Assalamu alaikum. Welcome to the First Grey podcast. I am Atif and I'll be your host for today. And our guest is Bibi Zainab. She's a familiar face. You may know her from her content, but I feel that she needs a proper introduction. She is a pharmacist, she's a therapist, she's a wonderful photographer, and she paints really well. She's a wonderful painter. From healthcare to mental health, from storytelling to social work. She has been associated with so many organizations. You just name it. There's so many. I just wrote on my phone. I'm just trying to memorize it right now. She has been associated with TCF, EDHI, Kiran Foundation, NABD, Child Life, and Momcast. So there has been so many organizations, there's so many worlds that she has explored, and I feel that all of these worlds have a distinct imprint on the wonderful voice that she has today. So जितने लोग ज़ैनब का content देखते हैं, they know that the quality of the craft that she has, and she always looks for nuances, and she always looks to raise relevant questions and stay away from looking for easy answers. तो one of those days जब ज़ैनब इसके बारे में सोच रही थी कि I want to do something of my own and I want one word that encapsulates everything that I believe in. And on one night, she suddenly woke me up and she said, "It's grey." She just said, "It's grey." I was very dizzy and I was like, "What are you saying? It's grey." So I'm right here. I'm going to turn to Zainab and tell me what does it mean? The genesis of the idea. I am so caught off guard with this monologue about you, but thank you. That's very generous of you. Um, These are facts. That's what it is. but yeah, it's just I did not know. Okay, that's how we're starting a podcast. But Right. yeah, I'm just like really caught off guard in a really good way. Um, I think that it's pretty much what you said. मैं एक तो ये है कि आई हैव बीन फाइंडिंग माय वॉइस एक तो सारी जिंदगी तो है ही बट स्पेशली इन द रीसेंट इयर्स आई हैव बीन रियली फाइंडिंग लाइक व्हाट इज इट ये जो है कोई एक आवाज है तो ये क्या है ना लाइक क्या क्या है सो एंड आई हैव बीन डूइंग दैट सीरीज ऑन इंस्टाग्राम एज वेल लाइक वेरी ऑनेस्टली जस्ट putting it out there कि this is what's going on. A lot of people have been asking me as well, where are you, we don't see you anymore, क्या चल रहा है अब तो I have been looking for myself. I've been looking for myself. Still am. And when I was, जब मैं नाम सोच रही थी, so I had, the idea was there, concept was there, working भी कब से start हो गई थी. And I was like, but the name, and जो नाम आया जा रहा था, मुझे हो रहा था, जब मैं कोई नाम मुझे तो हाँ यार ये वाला नाम ये समझ में आ रहा है. फिर मुझे तो नो बट इट्स बहुत ब्लैक एंड व्हाइट है यार, इतना ब्लैक एंड व्हाइट नहीं है ना, हम इतने एब्सोल्यूट क्यों हो जाते हैं, हर चीज इतनी एब्सोल्यूट क्यों कर रहे हैं. सो एवरी टाइम आई वुड थिंक ऑफ अ नेम, थिंक ऑफ लाइक नीश, और मैं उसको वो कर रही होती थी, मुझे तो बट इट्स ग्रे यार, ये ना ब्लैक एंड व्हाइट हो रहा है, इतना नहीं ना, नुआंस किधर है, वो किधर है, एक्सप्लोरेशन वाला रूम किधर है. तो वो हर दफा मैं बात करती हर दफा होता है नो बट इट्स नॉट दैट ब्लैक एंड व्हाइट. फिर उसने यार बट इट्स ग्रे ना, अब वो ग्रे एरिया खत्म हो रहा है ना इस नाम के बाद. तो फिर वो हुआ था कि इट्स ग्रे तो ग्रे है ना फिर नाम. सो दैट्स बेसिकली हाउ आई लाइक द जेनेसिस. That's the genesis of the idea. And even after the idea was born, I think you stayed with it for like a few weeks. And it was again coming up to you again and again while you were thinking about so many things. It was just coming up to you again and again. ऐसा ही. Yeah. That, it's grey. See, it's grey. I'm telling you, it's grey. अच्छा, जब से तुमने मुझे ये आइडिया बताया, द जेनेसिस तो बता दिया, लेकिन जब से तुमने मुझे आइडिया बताया, मुझे लग रहा है मेरा लेंस भी ग्रे हो गया. लाइक मैं कुछ भी कर रहा हूँ, मुझे लग रहा है अच्छा ये भी ग्रे है, मैं कुछ भी देख रहा हूँ अच्छा ये भी ग्रे है. ग्रे चीज़ें तो ग्रे हैं ही, जैसे अभी कुछ ग्रे नजर नहीं आ रहा मुझे, लेकिन But that's the grayness that's of the it. grayness of it. It's not the And- color gray. हाँ, exactly. And the funny thing about it is, it's like it is the most untapped part of our lives, and so much of it is covered by it. Like आपको हर जगह नजर आता है. We live in the gray. We don't live in the absolutes.
you know. तो तूने मुझे आइडिया बताया था, and I was like very fascinated by it, and then it started to grow on me as well. और मुझे लगा कि हाँ यार, एक्चुअली मैं this is actually very true कि हर चीज़ encapsulate करता है ग्रे. And that's where the real discussion lies. So And I think one thing that's even क्योंकि इतना मैंने टाइम लगाया है उसको सोचने में और सब कुछ, so one thing that kept on coming was ग्रे अक्सर समझा जाता है with confusion or lack of clarity. And that's exactly, you know, why I wanted to do it the gray way, because that's not what gray means. Gray is where you find wisdom. Gray is where you find enlightenment. Yeah. You know, gray is actually where, you know, like आप दो absolutes से निकल कर you go into the complexity of those absolute truths. ग्रे का मतलब ये नहीं है कि absolute truths exist नहीं करते, वो exist करते हैं. But the human life and the human form is complex. And that's why we need to go into the complexity of it. yeah. So it's not like we're not saying कि black and white नहीं होती हैं चीज़ें. Black, white and grey होती हैं चीज़ें. Right. You mentioned enlightenment wisdom आपको ग्रे में मिलती है. तो ऐसी enlightenment wisdom एक भाई साहब ने भी दी थी. ठीक है. लगा था उनको कि वो wisdom दे रहे हैं, वो बड़े wisdomous हो रहे हैं और वो enlightened हो रहे हैं. But actually, you made a reel on Felix Shabir's comments about women wearing short clothes, and that is how that is, you know, ruining the society. उस पे तुमने एक reel बनाई थी that we are confusing privilege with enlightenment. So I would like you to elaborate on that, and what actually made you believe that Falak Shabir was actually speaking out of privilege and not enlightenment. Yeah. So, you know, confusing privilege with enlightenment was actually one of the first topics जो कि मैंने सोचा हुआ था कि जब भी हम अपनी podcast करेंगे, this is going to be the first topic. क्योंकि like I said, I was finding my voice और मैं बहुत सारी चीज़ें मुझे unlearn करनी पड़ रही थी अपने आप को लेके कि the way I feel I contribute in the society. So what is that contribution? And every time मैंने इतने scripts लिखे हैं, मैंने मतलब इतनी सारे टॉपिक्स और सारा कुछ मैंने मतलब हटा दिया, नहीं किया मैंने वो. कितनी रिकॉर्डिंग्स ऐसे ही कर दी थी. इतने महीने गुजर गए एंड एवरी टाइम आई जस्ट यू नो लाइक मैं बार बार मुझे ना मतलब एक टेस्ट आ रहा था बार बार उसका कि यू नो ज़ैनब लाइक क्या हो रहा है ये, वेयर इज लाइक ये परफॉर्मेटिव क्यों हो रहा है, क्या कुछ है, कुछ गड़बड़ लग रही है इसके अंदर ना. एंड देन यू नो I was talking to myself and I was like, उस टाइम तक ग्रे नहीं कंसीव हुआ था आइडिया, एंड दैट्स लाइक मैं इसको क्यों उतना ब्लैक एंड व्हाइट कर रही हूँ, वेयर इज दैट प्रेशर कमिंग फ्रॉम, because I think that there's more nuance in these topics, you know, when it comes to women rights, when it comes to human life and relationships and everything in the society. And मैं जो कर रही हूँ, and you know, it was coming from a very reactive state and I had to really check in with myself as to what's happening with my voice. And this is where I found my blind spot. कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं उन चीज़ों के बारे में बात कर रही हूँ जिसके बारे में if I'm being honest with myself, I don't know shit about. सही है. जब हमारा जो एक कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा आ रहा होता है, लाइक मुझे भी बहुत ज़्यादा लोग बोल रहे थे यू नीड टू एजुकेट द मासेस. ज़ैनब, यू मासेस को तुम्हारी ज़रूरत है तुम्हारी, और मैं उसको इंटरनलाइज करूँ. एंड लाइक दिस इज ऑल्सो फैमिली लेगेसी एज वेल, यू नो, सर्विंग द कम्युनिटी. एंड you know, because you're so special and because you know you have this wisdom and intellect and education, तो आपको तो masses को educate करना चाहिए. And you know, that's the role that I was performing. And then I was just sitting down with myself and with that honesty I was like, no, I don't know what's going on with the masses, because I do not come from the masses. So if I don't know कि masses की जिंदगियों में actually चल क्या रहा है, तो मेरे पास ये अथॉरिटी कैसे आ रही है कि मैं उनको ये बताऊं कि असल में ना आपको ये करना चाहिए. मैं आपको एजुकेट करने के लिए आई हूँ. ना मैं आपकी ज़बान बोलती हूँ, ना मैं आपके इलाके में रहती हूँ. मैंने एक कदम नहीं रखा आपके शूज़ में कभी ज़िंदगी में. इतने डिस्कनेक्टेड हूँ मैं आपसे, बट मैं आपको एजुकेट करूँगी कि असल में ना आपको नो नहीं बोलना चाहिए अपने बच्चों को. आप वैलिडेट करें उनकी फीलिंग्स, ये करना चाहिए आपको. और मैंने एक दिन नहीं गुजारा, मुझे कुछ नहीं पता. जिन मासेस के मैं बात कर रही हूँ मुझे कुछ नहीं पता उन मासेस के बारे में. सही है. सो you know, that's when you find your own blind spot, and I think that is exactly why I
made that reel because जब आप उस तरह की बात करते हैं कि what he said was कि माशरा ख़राब हो रहा है, he tagged a federal minister and he said कि प्लीज़ ये ना माशरा ख़राब हो रहा है तो इन छोटे कपड़े जो ये बाजार में पहन के आते हैं तो आप इनको मना करें, ठीक है, कि इनका कोई लॉ होना चाहिए कि people should not be able to wear short clothes and that's all the statement was. जिस माशरे की आप बात कर रहे हैं उसी माशरे में अगले दिन अगले दिन तो एक इंसिडेंट हुआ है, ऐसे करोड़ों इंसिडेंट्स होते हैं, हमारे पास सारे स्टेटिस्टिक्स हैं जो उस रील के अंदर भी मैंने शेयर किए थे, एएसएफ के एसेट सर्वाइवर फाउंडेशन के स्टेटिस्टिक्स हैं पाकिस्तान के, क्रेजी स्टेटिस्टिक्स। तो अगले दिन एक एसिड अटैक हुआ था क्वेटा में और उससे एक दिन पहले इनकी स्टेटमेंट आई हुई थी। जिस माशरे की आप बात कर रहे हैं वो 2 डायमेंशनल माशरा नहीं है, वो यही माशरा है। जिस माशरे में एसिड अटैक हो रहा है इसी माशरे की बात कर रहे थे आप। आपका माशरा अलग नहीं है, ये माशरा अलग नहीं है। सो हाउ कम यू डिड नॉट हैव दैट आई टू सी के बट माशरा सिर्फ लिबर्टी में थोड़ी है, लिबर्टी मार्केट में थोड़ी है, माशरा तो क्वेटा में भी है, यही माशरा तो यहाँ क्या है वो वापडा टाउन में भी है, मतलब यू नो तो ये तो हर जगह है ना यही माशरा। तो आपका माशरा इतना अलग क्यों है और इतनी नैरो विंडो क्यों थी आपके माशरे की? सो दैट्स वेयर द कॉन्सेप्ट कम्स इन। प्रिविलेज को अक्सर कंफ्यूज किया जाता है विजडम से। नाउ इन दिस केस स्पेसिफिकली व्हाट्स द प्रिविलेज? सेलिब्रिटी, फेमस होना, आपकी रीच है ना फेडरल मिनिस्टर की, हर किसी की नहीं होती, ठीक है। सो यू आर फेमस, यू हैव अ प्लेटफॉर्म, यू हैव अ वॉइस, यू आर अ मैन। आप इस मुल्क में अगर आप बेसिक फाइनेंसेस कवर्ड है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है, एजुकेशन है, यू लिव अब्रॉड, आप हार्डली 1.52% में आते हैं इस मुल्क के, सही, दैट इज योर प्रिविलेज। सो अक्सर ये होता है कि इस सिचुएशन को, हाईली प्रिविलेज्ड सिचुएशन को इंटेलेक्ट के साथ कंफ्यूज कर लिया जाता है। वो असल में मैं बहुत ज़हीन हूँ, असल में मुझे माशरा पूरा समझ आ, असल में मैं आपको बताता हूँ कि आपको होता ये है कि दैट डोमिनेंस एंड दैट प्रिविलेज एंड दैट डिसकनेक्ट फ्रॉम द मासेस, तो वो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा होता है कि बेसिकली मैं इनलाइटेंड हूँ, मैं बेसिकली इनसाइड बहुत है ना मेरे पास, मैंने जिंदगी में इतना कुछ किया तभी तो मैं इन सबसे बेहतर हूँ, तभी तो मैं 2% में आता हूँ क्योंकि मैं बहुत ज़बरदस्त हूँ। ये हमारा प्रिविलेज हमारे साथ करता है, वेयर हमें ये लगता है कि लिविंग अ कंफर्टेबल लाइफ इन अ थर्ड वर्ल्ड कंट्री लाइक पाकिस्तान, इसमें हमारा बहुत कमाल है क्योंकि हम बहुत कुछ हैं। और असल में everybody who is, you know, the masses, the 90% of the people in this country, they don't have that wisdom, they're not that smart, असल में वो educated भी नहीं है और असल में उनके पास तो वो इंटेलेक्ट नहीं है कि वो मेरी वाली लाइफ गुजार सकते। दैट्स व्हाट आई मीन व्हेन आई से कंफ्यूजिंग प्रिविलेज विद एनलाइटनमेंट। अब ये जो प्रिविलेज लोग होते हैं व्हेन दे, बिकॉज ये बहुत कॉमन है, दे से दीज स्टेटमेंट्स ट्राइंग टू यू नो पुलिस सोशल बिहेवियर, और उनको लगता है कि माशरा इससे तबाह हो जाएगा, ये ना करें तो माशरा तबाह हो जाएगा, यू नो, ट्राइंग टू पास ऑन वर्ड्स ऑफ विजडम, एंड दे से दैट we are doing this for the betterment of masses. How do you see this? Like, they're saying this, that they're doing this for the betterment of masses. They're using their privilege for the betterment of masses. How do you see this? And before I answer that, I don't want to forget. So I want to talk about the brand of the podcast today. So the brand of today's podcast, the brand that we are going to feature is Forifix. And Forifix basically is led by my most favorite, my dear friend, Samina Faisal Khan. Forifix के हमारे आई थिंक पिछले कोई 3 सालों से Forifix को हम लोग कंटिन्यूसली यूज़ कर रहे हैं अपनी लाइफ में, स्पेशली जब सीजन चेंज होता है और एसी को रिपेयर की ज़रूरत होती है। दैट्स व्हेन वी टेक्स्ट समीना कि समीना हमें Forifix की सर्विसेज की ज़रूरत हो गई है। आवर एक्सपीरियंस हैज़ बिन ग्रेट विद Forifix, एंड आई थिंक वन ऑफ द थिंग्स दैट Forifix हैज़ डन, इट्स द पेस्ट कंट्रोल इंडस्ट्री के अंदर Forifix हैज़ बिन ट्रेंड सेटर, यू नो। और आप अगर Forifix के पेज पे जाएँ, उनकी सर्विसेज देखें, and you get to know about the vision of Samina and the, you know, what she's trying to achieve with Forifix. बहुत preventive measures हैं और वो pest control के बारे में इतने passionately बात करती है, and the way they, you know, train their team और जिस तरह का उनका work ethic है, it's also like highly commendable. Especially, I'll talk about the team as well. The team is wonderful. वो आपके घर आएंगे, नॉर्मली होता है कि एसी वाले आते हैं, गंद मचा के चले जाते हैं,
आपके घर आएंगे, दिल आस्क फॉर थिंग्स कि हम ये नीचे रख लेते हैं, मिट्टी गिरेगी तो हम वहाँ पे झाड़ू कर देंगे, एंड दे जस्ट टेक केयर ऑफ द हाउस लाइक देयर ओन। और हम सिर्फ एसी रिपेयर नहीं करवा रहे होते, समटाइम्स सोफाज गंदे हो रहे होते हैं, एंड इवन व्हेन वी शिफ्टेड टू दिस हाउस वाज सो डर्टी। व्हेन वी शिफ्टेड टू दिस हाउस इतना गंदा था, एंड वी वर लुकिंग यार, मतलब 10 इंसान भी बैठ के अगर इसको साफ कर लें तो नहीं हो रहा था, एंड वी कॉल्ड फॉर एफेक्ट्स एंड दे जस्ट brought in the wonderful team of people और उन्होंने डीप क्लीनिंग की इस घर की, एंड दे बेसिकली मेड इट लिवेबल फॉर अस। सो फॉरेफिक्स इज समथिंग विच वेरी क्लोज टू मी एज वेल, क्योंकि रात में एसी खराब हो जाए, रात में फ्रिज खराब हो जाए, मैं उनको मैसेज कर दूंगा, दे कम इमीडिएटली। अगर वो राउंड पे हैं, द टीम इटसेल्फ, समीना भी, वो दे जस्ट कम। And even Samina, I'll just give a shout out to Samina's husband as well. Bhai is also really helpful, and I think you should also use their services because they're awesome. या एंड उनकी सर्विसेज की रेंज भी बहुत ज़्यादा है, लाइक डीप क्लीनिंग है, विंडो क्लीनिंग है, सीपेज, लीकेजेस और इन सारी चीज़ों को जस्ट क्लीनिंग एवरीथिंग, अप्लाइंसेस वगैरह भी फिक्स करते हैं. सो यस, लाइक द रेंज ऑफ सर्विसेज दैट दे प्रोवाइड इज़ रियली गुड एंड ऑल्सो very convenient, बहुत responsive हैं. And one of the things that happens with electricians and plumbing, तो उसमें यही होता है, आज जा रहे हैं, कल आ रहे हैं, शाम में आ रहे हैं, फिर नहीं आ रहे, फिर आप इंतज़ार करते रहते हैं, मतलब आपको इतना इंतज़ार करना पड़ता है. So that's one of the reasons that I really like Forifix is because it's very convenient. You call them, they are responsive, they will tell you हम इस टाइम पे आएंगे और आपके काम भी हो जाएंगे. And वही again, hygiene and maintenance go hand in hand with Forifix. The team is so competent. क्योंकि you hardly find these people, ये अक्सर आपके घर पे आते हैं इलेक्ट्रिशियंस वगैरह, and you don't know whether they're competent or not, वो ज़्यादा काम खराब करके चले जाते हैं. और with Forifix, the experience has always been wonderful. Yeah, so check their website and yeah. So moving on with the question. Yeah. So आप ये कह रहे थे कि अगर privileged लोग betterment of the society के लिए बात कर रहे हैं, मतलब क्लेम तो यही करते हैं कि हम अगर पॉलिस कर रहे हैं तो हम we are doing this for the betterment of masses. We are using our privilege for the betterment of masses. अभी तुम भी कह रही थी ना कि तुम्हें लोग कहते हैं कि you should educate people. You should use your privilege for the betterment of masses. So how do you see that? I don't know, because देखिए, a privileged class should work for the betterment of the society. So अगर आप billionaire हैं, so I think if you want to give back to the society, then you will have to give up a lot of billions. Because आप billionaire इस वजह से बने because probably an industrialist in your family underpaid the labor. एक disparity create की उन्होंने, तो if you really want to do something for the society, give back their money. जो कि आपने अंडरपेड लेबर, चाइल्ड लेबर, आपके यहाँ जो आपके एम्प्लॉयज़ होते हैं वो तरस रहे होते हैं ना, वो रेंट दे पा रहे होते हैं. तो आपने जो होता क्या है, अगर आपने 10 लोगों से काम करवाया है 10 रुपए में और आपने 10 लाख बना लिए हैं, तो ऑफ कोर्स आप बिलियनर थे ना. आपने सोसाइटी को वापस देना है, अपने सारे एम्प्लॉयज़ को प्रॉपर सैलरीज दें, ठीक है, इस ज़माने में रहने वाली सैलरीज दें कि they are able to afford their children's education and health. ठीक है, आप उनको वो दें, इंश्योरेंस दें, आप उनको जो उनकी वेजेस बनती हैं आप वो दें, ओवर टाइम नहीं करवाएं, ज़्यादा एम्प्लॉयज़ हायर करें ताकि लोग मुनासिब टाइम पे अपने घर जा सकें. मैं देखती हूँ फिर आप कितने ब्रिलियंट बिलियनर बन पाते हैं इस दुनिया के अंदर. तो आप ये सारा कुछ ना करें ना. तो अगर आपने बेटरमेंट ऑफ द सोसाइटी के लिए काम करना, दैट्स वेयर यू स्टार्ट. सो और अगर फर्ज करें आप ये नहीं कर रहे हैं, यू आर डूइंग सम सोशल वर्क, एंड यस, लाइक आई एम नॉट सेइंग कि नहीं करना चाहिए, बट अगेन लाइक आई एम जस्ट कॉलिंग आउट द प्रिविलेज इन दिस, लाइक कि एलॉन मस्क बड़ा चैरिटी वाला काम कर रहा है, बिल गेट्स जी बड़ा, एलॉन मस्क ने पूछा था वर्ल्ड हंगर खत्म करने के लिए यूएन से, यूएन ने एक एस्टिमेट लगा के दिया था 6.6 बिलियन आई गेस. सो ही ओनली हैड आई थिंक 60-80 बिलियन उस टाइम पर, तो उससे अफोर्ड नहीं हो पा रहा था, ज़्यादा महंगा हो रहा था. तो कर लें यार आप वर्ल्ड हंगर, ट्रिलियनर वर्ल्ड हंगर यार बता दिया, यूएन ने एस्टिमेट दे दिया, कर लें आप. यू वांट टू डू, बट दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, यू नो, कि दैट्स आवर ब्लाइंड स्पॉट. आप प्रिविलेज्ड कैसे बने हैं इस माशरे के अंदर? आई थिंक if you start exploring that, if we start exploring that with honesty, I think we will reach a point where, you know, we would see how we are privileged and other people are not. You actually used two very interesting words. One is blind spot. I would love to explore that more. लेकिन उससे पहले masses की बात हो रही है हमारे यहाँ पर. क्या है masses? Like, how do we classify them? When you say that these are for the masses, you know,
ये कौन है मासेस जिनके लिए हम कर रहे हैं? क्या ये अनएजुकेटेड पुअर बैकग्राउंड के ये वो लोग हैं जिनकी आप बात करें जिनको आपको एजुकेट करने की ज़रूरत है, या यही गांव के लोग? अगर आप हुंजा में चले जाएं, गांव में लोग होंगे बट दे आर मोर एजुकेटेड देन यू, दे यू मे फाइंड मोर वाइज पीपल देन यू, दे विल बी मोर प्रोग्रेसिव। वहाँ पे 100% लिटरेसी रेट है, क्या वो भी मासेस में आएंगे? हाउ डू यू डिफाइन मासेस? कौन है ये मासेस? Yeah, this is exactly what I ask. ये मेरा भी सवाल होता है कि when you know people say कि but we have to educate the masses on this. मेरा भी यही सवाल होता है कि when we say masses, what do we mean? सही, how am I not, you know, मैं कैसे differentiate कर रही हूँ अपने आप को? So again, मैं अपने experience की base पे define करती हूँ कि मुझे क्या समझ में आया है कि when we the privileged people of Pakistan, when we say masses, what do we mean? जो मेरी समझ में आया है कि हमें मासेस को ये एजुकेट करना है. सो बेसिकली दे आर टॉकिंग अबाउट पीपल हु डू नॉट गो टू स्कूल्स, जो अफोर्ड नहीं कर सकते गवर्नमेंट स्कूल जाने के लिए भी, जो ये लेट से के मेरे जैसे घर में नहीं रहते या हमारे जैसे घरों में नहीं रहते, और मे बी वो ट्रैवल नहीं करते, उनका पासपोर्ट नहीं बना हुआ होता, ठीक है, और गुर्बत की लकीर से नीचे हैं. Probably most of the population in Pakistan, क्योंकि वो गुर्बत से की लकीर से नीचे है. And one thing that you know, मतलब जो मैंने अभी तक जो क्राइटेरिया जो मुझे समझ में आया when people say masses and non-masses, privileged वो है जो completely urbanized है. Like that's what I have been able to extract from, you know, when Privileged वो है जो highly urbanized city people. Okay. Okay. You know, Yeah. so when people say कि हमें masses को explain करना है, so what the underlying, you know, the subtext is basically people who do not live in the cities or people who do not live in the bigger cities. So when पाकिस्तान में जब बात हो रही है तो कराची, लाहौर, इस्लामाबाद के अलावा जो लोग हैं वो masses हैं. Now this is not technical definition of the masses, but this is what when people say masses, this is what they mean. कि अभी रिसेंटली किसी से बात हो रही थी तो मुझसे कह रहे हैं यार अंग्रेजी बहुत बोलती हो ना तुम अंग्रेजी तुम्हारी बहुत ज़्यादा है. तो मैं आपको यही बता रही थी कि मतलब कि मुझे बहुत ज़्यादा वो फील होता है, बुरा फील होता है कि जब मेरी लैंग्वेज के ऊपर कोई बहुत ज़्यादा कमेंट करता है. हाँ है, दिस इज़ हाउ आई थिंक, दिस इज़ व्हाट आई हैव बीन, यू नो, रेज्ड इन. अब तो मेरी लैंग्वेज, मेरी उर्दू भी बहुत अच्छी है, मेरी इंग्लिश भी बहुत अच्छी है. मैं कुछ चीज़ें जो मैं सिर्फ उर्दू में सोच सकती हूँ और लिख सकती हूँ, कुछ चीज़ें जो मैं सिर्फ इंग्लिश में सोच सकती हूँ और लिख सकती हूँ, ठीक है. मेरी उर्दू राइटिंग भी बहुत अच्छी है, मैं उर्दू में लिखती हूँ स्क्रिप्ट. मेरी इंग्लिश राइटिंग भी बहुत अच्छी है, ठीक है. एट द सेम टाइम मुझे पूरी पश्तो समझ में आती है और मुझे पंजाबी भी पूरी समझ में आती है. पश्तो में मैं कॉन्वर्जेशन भी कर सकती हूँ. नॉट ग्रेट बट आई कैन, राइट. एक और भी कुछ ज़बान है जो मुझे आती है समझ में. खैर, द थिंग इज कि मुझे जब वो ये बोल रहे थे तो उन्होंने कहा कि यार यही हमारा ना प्रॉब्लम है, हमें अपनी ज़ुबान से ना प्यार नहीं है. अब उर्दू में तुम्हें ना बात करनी चाहिए, जब हम मासेस को एजुकेट करते हैं तो हमें उर्दू में बात करनी चाहिए. मासेस आपकी उर्दू नहीं बोलते. Yeah, exactly. आपको मासेस को एजुकेट करना है, पश्तो में बात करें. मासेस को एजुकेट करना है, पंजाबी में बात करें, सराइकी में बात करें, सिंधी में बात सही. बलोची इज नॉट मासेस, मतलब लैंग्वेज नहीं बोले जाती. बट इफ यू वांट टू रीच बलोचिस्तान, इफ यू वांट योर वॉइस टू गो टू बलोचिस्तान, इफ यू आर सीरियस अबाउट एजुकेटिंग द मासेस, देन यू वुड मानसेरा वाला डायलेक्ट सीख लें आप पश्तो का. दैट इज कंपैरेटिवली द ईजियर वन. और उसमें ये होता है कि क्योंकि एक्सेंट्स फिर टूवर्ड्स अफगान बॉर्डर आपके एक्सेंट्स और डायलेक्ट्स बहुत ख़तरनाक मुश्किल होना शुरू हो जाते हैं. नहीं समझ में आएगी भाई, बहुत मुश्किल लैंग्वेजेस हैं, नहीं आती समझ में. प्रॉपर लैंग्वेजेस विद सेंचुरीज की हिस्ट्री है, उनका लिटरेचर है और क्या कुछ है. सो आपने मासेस से बात करनी है, आपका तो लैंग्वेज बैरियर ही इतना बड़ा है. मैं कैसे बात करूं आतिफ? मैं कौन होती हूँ कि मैं मासेस से बात करूं जब मैं इस जबान में बात कर रही हूँ? सो दिस इज वेयर आई गेट अ रियलिटी चेक फॉर माई सेल्फ कि नो, माई वॉइस इज देन नॉट फॉर द मासेस. My voice is only for people who understand and who can relate to what I'm saying. And maybe they can decide what they want to take and what they don't want to take. Because ऐसा हो सकता है कि मैं अपने बबल में बैठ के जो बातें करूं, मैं अगेन जैसे पॉवर्टी के बारे में लोग बात करते हैं ना, अगेन मासेस को बता रहे हैं कि यार असल में ये लोग गरीब हैं, ये लोग मेहनत नहीं करते. इन लोगों के ना एटीट्यूड्स जिंदगी में ना आगे बढ़ने वाले एटीट्यूड्स नहीं होते, इस वजह से
पॉवर्टी नहीं इनकी, गुर्बत में सारी जिंदगियां गुजार लेते हैं, इनके हालात नहीं बदलते, इनका एटीट्यूड देखो किस तरह का है। आपको लगता है कि गुर्बत जो है वो मेहनत करने से कम हो जाती है? गुर्बत जो है वो, अगेन वन थिंग दैट आई सेड इन द रील एज वेल विद द फलक शब्बीर इंसिडेंट वाज आल्सो कि कल्चर के ऊपर कमेंट करने के लिए सिर्फ यही ना, प्रिविलेज्ड हैं तो कल्चर के ऊपर कमेंट कर दिया, जो औरतों के ऊपर कमेंट कर दिया, मासेस के ऊपर कमेंट कर दिया, असल में ये नहीं होता, यूं आप नहीं करते, ये सही नहीं है, ये गलत है। प्रिविलेज्ड है, सोशल सिस्टम्स के बारे में कद्दू आपको कुछ नहीं पता, क्यों नहीं पता? अगर इतने आप प्रिविलेज्ड हैं, हम प्रिविलेज्ड हैं, मुझे क्यों नहीं पता कि क्या सिस्टमिक है ना चीजें, इंडिविजुअलिस्टिक नहीं है, तो मुझे क्यों नहीं पता? अगर मैं इतनी प्रिविलेज्ड हूँ, मैं दुनिया घूमती हूँ, मैं जो हूँ इस मुल्क के 5-6% में अगर मेरा शुमार होता है, मुझे सोशल सिस्टम्स के बारे में कुछ, मुझे क्यों नहीं पता क्या इकोनॉमिक सिस्टम है दुनिया का और वो किस तरह से वर्क करता है और इसने किस तरह से जकड़ के रखा हुआ है। तो व्हेन वी से कि गुर्बत जो है वो मेहनत करें तो आप अमीर हो जाते हैं, यू हैव नो आइडिया हाउ कैपिटलिज्म वर्क्स। आपको अंदाजा नहीं है कि पॉवर्टी जो है वो क्रिएटेड बाय मैन है, ये एक मैन मेड सिस्टम है जो कि क्रिएट हुआ है। ये जो डिस्पैरिटी थी, यही डिस्पैरिटी क्रिएट हुई। द रीजन दैट यू आर अप हियर एंड मासेस आर हियर इज बिकॉज ऑफ दिस सिस्टम। सही है। सो आपको तो पता ही नहीं है। मैं बोल जी, मैंने, आपने मजदूरों को, आपके हाउस हेल्प को काम करते देखा है इस टेम्परेचर के अंदर? आपको लगता है वो मेहनत नहीं करते? आपको लगता है वो मुशक्कत नहीं कर रहे अपनी जिंदगी में? अगर मेहनत के बदले पैसे मिल रहे होते तो क्या ही बात थी यार। ऐसा नहीं हो रहा है। दैट्स वेयर द सोशल सिस्टम, द सिस्टम ऑफ द वर्ल्ड कम्स इन। एंड यू नो, ये जो आप हमसे ब्लाइंड स्पॉट्स की बात कर रहे थे, ये होता है प्रिविलेज आपको वो ब्लाइंड स्पॉट्स देता है। सो यू आर नॉट एलिजिबल टू कॉमेंट ऑन कल्चर एंड ऑपरेशन एंड सोशल सिस्टम और फैमिली सिस्टम और वट एवर इज गोइंग ऑन इन द वर्ल्ड इफ यू डू नॉट हैव एलिजिबिलिटी फॉर इट। एंड व्हाट इज द एलिजिबिलिटी फॉर इट? कैसे फाइंड करेंगे अब एलिजिबिलिटी? कौन एलिजिबल है इस पर बात करेंगे? देखें, eligibility to comment on a social system would mean that you have studied it, you understand it कि आप उस पूरी साइकिल में कहाँ पर स्टैंड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, a very good example जिससे मैं ये एक्सप्लेन कर सकती हूँ is male privilege. So a lot of men have so many opinions about what women should do and should not do. औरत मार्च होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, ठीक है। औरतों को असल में ना घर में रहना चाहिए और अगर बाहर भी जाना है तो इस तरह से चले जाएं और फलाना कर लें और ढमकाना कर लें। असल में औरतों को चाहिए कि यूं करें। असल में औरत जो वुमेन राइट्स है ना, वो ये है। असल में औरतों को ना किसी ने गलत बता दिए, सो मैनी ओपिनियंस। आप मुझे ये बताएं कि व्हाट मेक्स यू थिंक दैट यू आर एलिजिबल टू कमेंट ऑन व्हाट वुमेन शुड एंड शुड नॉट डू? इज इट विजडम? You are not a woman. Yeah. सही है. You have no idea what women are going through. Have you ever sat down with women and understood कि वो क्या कहना चाह रही हैं? तो आपको क्या लग रहा है ये जो अकवाले ज़र्री आप बांट रहे हैं दुनिया के अंदर, तो आपको किसने बोला है कि आप एलिजिबल है? That's the privilege. A man has the platform. A man इस ये सिस्टम उसको ऑडेसिटी देता है कि जी आप बताएंगे, निकले घर से बाहर नहीं निकले? अच्छा नहीं निकले, अंदर जाए भाई आप, इनको नहीं, अंकल को नहीं अच्छा लगा, आप अंदर जाए। नहीं वो फलाने अंकल कह रहे हैं ये नहीं हो सकता, हम नहीं अलाउ करेंगे ये जी, हम तो नहीं कर रहे। हाँ. पूरा माशरा डिसाइड करेगा कि उस औरत को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो ये कैसे हो रहा है? So nobody understands what women are saying when it comes to men, or that's how basically जो आप कह रहे थे ना कि eligibility कैसे होएगी। पहली चीज तो ये है कि if you are not a woman, you do not have a say in this. No uterus, no opinion. ठीक है। And secondly, अगर आपने सोशल सिस्टम के बारे में बात करनी है, आपको इस सिस्टम को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। ठीक है, आपको ये देखना पड़ेगा कि अच्छा किस तरह से चल रहा है सिस्टमिक ऑपरेशन, क्या है, किस तरह से वो वर्क करे। अच्छा जो खवातीन कह रही हैं, सो व्हाट हैज हैपेंड, व्हाट इज पेट्रियार्की, डू आई अंडरस्टैंड पेट्रियार्की, डू आई अंडरस्टैंड माय ओन मिसोजिनी, एम आई ब्रेव इनफ टू क्वेश्चन माई सेल्फ एंड चैलेंज माई सेल्फ विद ऑल द प्रेजुडिसेस दैट आई होल्ड अगेंस्ट वुमेन। क्या मुझे समझ में आ रही है कि मेरे साथ क्या प्रॉब्लम है? ठीक है, वंस यू अंडरस्टैंड दीज थिंग्स, वंस यू हैव, और मैं तो ये बोलूंगी कि व्हेन इट कम्स टू वुमेन राइट्स, फॉर्मल एजुकेशन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मैन, स्पेशली फॉर मैन। हर कोई मुंह उठाकर आके कुछ भी बोल देगा, खवातीन को ये करना चाहिए, ये करना है, खवातीन को ये करना। आप एलिजिबल नहीं हो उसके बारे में बात करने के लिए। आपको क्यों लग रहा है कि आप एलिजिबल हो उसके बारे में? यू कैन हैव एन ओपिनियन, यू कैन नॉट पास अ स्टेटमेंट।
ठीक है, और ओपिनियन जो है वो ओपिनियन अपने तक रखना है आपको, और फिर अगर आपने वो ओपिनियन प्रेजेंट करने, लाइक इन द फलक शब्बीर स्टेटमेंट, इफ ही थिंक्स व्हाटएवर ही थिंक्स, ही कुड हैव सेड इन माय हम्बल ओपिनियन, Exactly, yeah. I think personally, I think कि this is something that I'm seeing around, it's like growing, और मुझे ऐसा लगता है, I may be wrong, but मुझे ऐसा लगता है कि maybe this is like a nuisance, and if you seem appropriate, the federal minister, can you please enlighten me? Is there anything that I am missing? Or maybe maybe you can tell me better, or the woman, I'm opening this to you, please let me know. What is there anything that I need to understand? So that's how you present your opinions as well. Yeah. But eligibility जो है ना, it's very different. मैं एक फार्मासिस्ट हूँ, so मैं मेडिसिन के बारे में बात करूंगी, that's not just my opinion, that's my professional opinion. Yeah. राइट, सो अगर कोई नॉन मेडिकल पर्सन जिसका मेडिसिन से कोई ताल्लुक नहीं है और वो बैठ के अगर मुझसे वो बात कर रहा है, वो उसका ओपिनियन है, और मैं ये नहीं कह रही कि वो ओपिनियन नहीं रख सकते, पीपल हैव ओपिनियन अबाउट मेडिसिन, ऑफ कोर्स जिंदगी में यूज करते हैं वो, बट मैं जो हूँ वो अपने ओपिनियन में मुझे कंफ्यूजन नहीं है, बिकॉज आई एम क्वालिफाइड टू हैव a professional opinion when it comes to medicine. Yeah. And I will hold that. I am eligible to do that. So that's the difference. Okay. So basically what I understand is that okay, once you identify your blind spots, basically आपको पता चल जाएगा, जो we were talking about those things that you need to understand before talking about something. Those things you understand, and that when you're saying those things, one word is keep popping in my head क्योंकि वो तुमने पहले use किया, and there are blind spots. So basically the road to wisdom is basically उसके अंदर आपको अपने blind spots को address करना पड़ेगा. I won't say wisdom, but I think जो blind spots हैं वो आपको आपके privilege को identify करने में help करते हैं. Sherlock Holmes का ना एक डायलॉग मुझे बहुत पसंद है, उसमें एक टी शॉप रन कर रही होती है, शी इज़ अ ब्लैक वुमन, एंड वो उससे बात कर रही होती है, तो वो कोई पॉलिटिकल इशू चल रहा होता है उस टाइम पे लंदन के अंदर, तो वो उससे उसके बारे में कुछ कहती है, तो वो शर्लॉक होम्स कहता है आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन पॉलिटिक्स, तो वो कहती है ऑफ कोर्स यू आर नॉट, व्हेन अ सिस्टम वर्क्स फॉर यू, you are not interested in it. Yeah. People who suffer because of a system, they are interested in it. तो उस सिस्टम के बारे में पॉलिटिकली जो लोग सोचते हैं वो लोग होते हैं जो सफर करते हैं. जिन लोगों को सिस्टम इफेक्ट ही नहीं करता, वो इंटरेस्टेड ही नहीं होते उसको बदलने के लिए. Why would I want to change a system which favors me? Yeah. So when men they easily comment on shorter clothes or women being whatever, or जब वो the system favors them. मैं अगर जब इंडिविजुअली किसी भी आदमी से बात करूं, इंडिविजुअली कोई इनकार नहीं करता इस बात पे कि men have a problem. Individually, when you actually say कि हाँ men have a problem, that's why हम ये कह रहे हैं आप कपड़े सही पहन. No, but men have a problem. But nobody talks about it. उसको कॉल आउट करने की जरूरत नहीं है. क्यों करेंगे? When the system favors it. भाई आदमी तो देखेगा, मर्द तो ऐसे ही होते हैं, नहीं तो ये तो ऐसा ही होगा, ये तो फलाना है, तो there will be so the system favors you. आपको सिस्टम से कोई प्रॉब्लम नहीं होगा. जब आप कहते हैं कि खवातीन को क्यों प्रॉब्लम होता है, बिकॉज द सिस्टम डज नॉट फेवर देम. अच्छा, तुमने एक ब्लाइंड स्पॉट की एग्जांपल दी थी मुझे. We were actually watching a video, and you told me that okay, see, that one. Do we want to take the name? That podcaster, that famous podcaster who No, don't take the name, but हाँ मुझे वो जो गल्फ में जो है उनकी दुकान थी जिसकी. हाँ, like that is like a very good example of when we say कि मैंने educate करना है masses को. So what happened was I was watching that podcast and he said कि मेरी जो friend है वो गल्फ में गई हुई थी, एक पठान के कपड़े की दुकान पे वो बैठी हुई थी, तो वो पीछे जो बंदा बैठा हुआ था, दुकानदार जिसकी दुकान थी बेसिकली, तो वो पीछे बैठा हुआ था, उसका छोटा बंदा हमें कपड़े वपड़े दिखा रहा था, तो वो ना टिकटॉक पे कुछ देख रहा था, तो अचानक से तुम्हारी रील आई.
तो मैंने उसको बोला कि ये तो मेरा दोस्त है, तो उसने कहा हाँ ये बंदे से मुझे बड़ा इख्तिलाफ है, ये जो है ना ये इस तरह की बातें करता है बिजनेस के बारे में, इसको कुछ भी नहीं पता है, ये मेरा इससे बड़ा तो इससे मेरा बड़ा इख्तिलाफ है। तो उसने उसको जो फेमस पॉडकास्टर है उसको बताया कि भाई इस तरह से देखो गल्फ का दुकानदार कह रहा है कि उसको तुमसे इख्तिलाफ है। सो नाउ द पॉडकास्टर वाज बेसिकली नरेटिंग द होल इंसिडेंट कि ऐसा ऐसा हुआ। तो ही सेड कि जब मुझे ये पता लगा कि गल्फ का एक दुकानदार मेरी पॉडकास्ट देख रहा है तो मुझे इस जिम्मेदारी का एहसास हुआ कि मुझे अपनी जो बिजनेस थ्योरीज हैं या जब मैं बिजनेस के कॉन्सेप्ट्स के बारे में बात करता हूँ तो मुझे एक ऐसी जबान में बात करनी चाहिए कि वो इसको भी समझ में आए, कि वो इसको भी समझ में आए कि अगर मुझे ये लोग भी देख रहे हैं तो फिर मैं मतलब और मुझे अपना वो महसूस होता है कि मतलब कि मैं और सिंपलीफाई करूं। एंड दैट्स व्हेन आई सेड कि यू नो दिस इज आवर ब्लाइंड स्पॉट। गल्फ में कपड़े की दुकान है उसकी, एंड द फर्स्ट थॉट यू हैड वाज कि मुझे इसको बिजनेस सिखाना है। गल्फ में दुकान है यार उसके, और प्रॉबेबली अक्सर ऐसा होता है कि उनकी जनरेशनल चल रहा होता है, वो बिजनेस होता बहुत देर लगती है नहीं, और वो जनरेशनली चल रहा होता है। गल्फ इज लाइक मेन स्पॉट, कब से होगी वहां पे उसकी दुकान, ठीक है। तो दुकानें नहीं आपको इतनी इजीली मिलती हैं, प्राइम स्पॉट्स के ऊपर मुश्किल होता है ना, वो वही पुरानी दुकानें चली आ रही हैं। सो द फर्स्ट थॉट वाज नॉट कि मे बी आई नीड टू सिट विद दिस गाय एंड लर्न समथिंग अबाउट बिजनेस बिकॉज ही सेड कि उसको मुझसे इख्तिलाफ है। सो दिस मैन हु रन्स अ बिजनेस is disagreeing with something on business with me, then maybe I need to understand and learn from him. So मुझे what do you think? Why do you think उसको ये thought नहीं आई कि यार मुझे इससे सीखने की जरूरत है? Maybe I don't know something that he does because he's a freaking businessman. तो what do you think? कि क्या आपको लगता है कि उसके क्या रुकावट बनी उसकी इस थॉट में? So the first thought was कि इसको सिखाना है मुझे, मैं इसको भी सिखाऊंगा, मुझे सब आता है। हाँ, बट व्हाई डू यू थिंक कि क्यों नहीं आई, रुकावट क्या बनी उसके अंदर? उसकी रुकावट यही थी ना कि उसको अपना ब्लाइंड स्पॉट नहीं नजर आया। उसको लगा कि आई एम द वाइजर, आई एम बेटर देन हिम, आई नो, आई एम सिटिंग, मैं एजुकेटेड, मैं फॉरेन एजुकेटेड हूँ, मैं वहाँ से बाहर से आके मैंने लम्ब से पढ़ाई की हुई है, लम्सू से पढ़ाई की हुई है मैंने, मैं बाहर से पढ़ के आया हूँ, मैं स्कॉलर हूँ, ठीक है, आई थिंक फुल ब्रेड स्कॉलर थे वो। एंड और वो उसको लग रहा है कि भाई मुझे सब कुछ पता है। एंड देन ही क्लेम्स ऑल्सो दैट ही इज़ नॉट एन इंटेलेक्चुअल, he also claims that he is not an intellectual, right? But he still is not ready to learn. So I think मुझे तो ये लग रहा है कि अपना blind spot नहीं identify कर पाया. Yes, and speaking out of privilege. but this is you know like again like it's so grey कि ये बड़ा मुश्किल है कि now you know somebody can argue, और ये argument है भी कि you know like हम privileged हैं and that's why we have access to all this you know information and education, and he did not, he must you know he might not have access to you know कि वो जाता और कोई डिग्री लेकर आता बिजनेस में और सारा कुछ है, एंड देन यू नो दिस डिस्पैरिटी कम्स इन एज वेल कि यू नो बिकॉज आई गॉट टू गेट दिस एजुकेशन, नाउ आई ऑल्सो वांट टू शेयर व्हाट आई लर्न, एंड यू नो कि इतना नॉन प्रॉब्लमेटिक सा थॉट प्रोसेस है ना कि इसको चैलेंज करने में भी मतलब जब मैं भी यही सोच रही थी तो मुझे हो रहा था कि इसको चैलेंज करने में मैं खुद इतना कॉन्शियस हो रही थी कि मतलब I don't want to do the thing that I'm talking against. Yeah. कि मैं जो actually जो highlight करना चाह रही हूँ, I also don't want to end up doing the same thing. Yeah. You know, so you know there is more complexity to it. But जो ये thought process है ये बड़ा सीधा है यार, बड़ा सीधा सीधा सा कि यार सिंपल सी तो बात है, हाँ तो उसने पढ़ के आया तो है ना वो बिजनेस। मेरा पॉइंट ये है कि जिस एजुकेशन सिस्टम में हम रहते हैं इस मुल्क में, ठीक है, इवन लाइक द बेस्ट इंस्टीट्यूशंस, मैं आपसे अक्सर ये बोलती हूँ कि कोई लोग होते हैं हार्वर्ड से पढ़ के आया होगा वो, सही है, और वो बात करेगा असल में ये औरतें जो पर्दा नहीं करती ना इस वजह से देखें जल्जले आ रहे हैं मुल्क में, और मतलब मैं ये सोचूंगी यार इसका हार्वर्ड भी कुछ नहीं बिगाड़ सकी, हार्वर्ड भी फेल हो गई इस बंदे के आगे यार, ठीक है, लम्प्स का ग्रेजुएट होगा और वो कहेगा कि कोई इतनी अभी बहुत प्रॉब्लमेटिक बात भी है, यू नो लाइक IBA का होगा, लाइक वन ऑफ द यू नो मोस्ट फॉर आपके बेस यानी आपके जो बेस्ट इंस्टीट्यूशंस हैं, एंड देन यू वुड सी कि यस बेस्ट एजुकेशन आई गेट इट, बट देन ये क्या है?
सो जो एक अनएजुकेटेड, और अगर मैं एक्सप्लेन करने के लिए बोलूँ कि लेट्स से एक बहुत ही जाहिल से डेमोग्राफिक में इस मुल्क के एक बाबा जी हैं जो बूमर जनरेशन है उनकी, ठीक है, और वो ये कह रहे हैं कि हाँ ये जलजले तो इन औरतों की वजह से ही आते हैं, तो आप हार्वर्ड गए यही ओपिनियन रखने के लिए, तो नाउ टेल मी ना कि एनलाइटनमेंट प्रिविलेज क्लास के पास कहाँ किसने बोला है कि है? इसका मतलब तो ये है कि इसके मैकेनिक्स ही फिर कुछ और है. And also with this education system that we have, and previously when we were talking, and I you are the the better person to comment on the problems with our educational system. But like इस एजुकेशन सिस्टम में जहाँ पे क्रिटिकल थिंकिंग नहीं है, जो कि एक कॉलोनियलिज्म का प्रोडक्ट है, जो कि आप ये समझ लें कि बस एक बेयर मिनिमम एजुकेशन के नाम पे बस कुछ चल रहा है टाइप सिचुएशन है, ठीक है. You really think that our educational institutes are producing enlightened minds? Yeah. Oh. So again, like when we say educated or uneducated, ever since I started listening to people who are not formally educated but educated, like in the truest sense, educated by life, educated by faith, educated by circumstances, the spiritual leaders. My dada was one. There are so many things that he practiced, और आज मैं सोच रही होती हूँ कि oh my God, आज मैं जितनी somatic techniques और जितने spirituality के concepts में psychology में पढ़ रही होती हूँ, my dada used to do it. Now he was not a psychologist, he was not formally educated. I mean, he was formally educated, but not in those fields, not in the mental health fields. But honestly, that's where I resort to. I visited my ancestral village last year. Last year, था ना? Last हाँ. year, And I sat on that rock. सही है. And now I'm coming from a place of all these theories that I have studied in psychology, अपनी पढ़ाई के अंदर और अपनी ट्रेनिंग के अंदर. But then, मेरे दादा को ये बात कैसे पता थी यार? So what are the mechanics of wisdom? मुझे नहीं पता. And ever since I started, like connecting with it, कभी मैं जिन डेमोग्राफिक के साथ काम करती हूँ, कटी पहाड़ी मॉडल कॉलोनी, I have spent a lot of time in refugee camps as well, in lower socioeconomic demographics in Karachi as well, Liari. When I sit with those women and people in general, or even kids, it has been, alhamdulillah, a very humbling experience for me in my life. No formal education, कुछ भी नहीं है, कोई privilege का पी नहीं है उनके पास यार, ठीक है, जो मेरे पास है, जो हमारे पास है. And then, they would say things that you would be like, oh my God, यार. मैं 2012 या 13 की बात है, मेरा ED सेंटर का विजिट था. तो हम लोग ये करते थे कि हम लोग एक ग्रुप इकट्ठा करते थे, एवरीबडी वुड पिच इन, हम अपने चीज़ें भी लेकर आते थे, फंड्स कम होते थे लेकिन हमेशा पूरे हो जाते थे, इतनी जेनरोसिटी के साथ सब लोग कर रहे होते थे, पॉकेट मनीज ला रहे हैं, क्या ला रहे हैं यार, मग्स उस टाइम में पूरे पूरे गुल्लक भी ला के दिए हैं लोगों ने, जो गुल्लक नहीं तोड़ के जो कॉइन्स वो तक ला के दिए हैं हमें उस टाइम पे. तो हम लोग वहां पे गए थे, तो हमारी हमेशा ये कोशिश होती थी कि अगर 150 बच्चे हैं ना ऑर्फनेज के अंदर, तो हमें ये होता था कि हम सबके लिए गिफ्ट्स लेकर जाएं, कि कम ना पड़े ना, कि सबको हो जाए, चलो ज्यादा हो जाए लेकिन एटलीस्ट सबको हो जाए. खैर उस वक्त क्या हुआ कि एक कम पड़ गया था हमारे पास और 3 बच्चे रह गए थे. तो हमने कहा कि यार, एक उनमें से छोटा था बहुत, मतलब इतना छोटा था कि हमें ये लगा in our enlightened minds के ये छोटा है तो इसकी मेमोरी में इतना होगा नहीं, तो हम बड़ों को दे देते हैं ताकि इन लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो ना. छोटे सोच ही छोटी अपनी छोटी सोच से ऑपरेट कर रहे थे हम लोग कि ये छोटा है, इसको तो याद नहीं होगा, तो हम इसको जो है वो बड़ों को दे देते हैं, तो उसको हम बहला लेंगे किसी तरह से. खैर वी डिड व्हाट वी डिड, और हमारी भी गलती नहीं थी, हमने अपने से तो पूरी कोशिश की थी, बट हाँ एक रह गया था. तो वो आया वो बच्चा. अच्छा, वो बच्चा, मैं जितनी दफ़ा गई हूँ हैदराबाद वाले ऑर्फनेज ED, I used to meet him every day, and I had this bond with him, and he would call me Api, and he would always say कि अब आप कब आएंगे, and I could not promise because we cannot make fake promises with them. तो हर दफ़ा मैं जाती थी, आई हैव लाइक मेरे पास पिक्चर्स हैं 4-5 जिसमें वो छोटा बच्चा फिर वो ग्रो करते करते उसकी हाइट भी ठीक ठाक बड़ी हुई है. सो लाइक ओवर द इयर्स आई हैड दिस बॉन्ड, एंड दैट वाज द फर्स्ट टाइम जब मैं उस वक्त मिल रही थी उससे. एंड ही केम टू मी एंड ही सेड, बाजी आप ना ये इसको दे दें, ये छोटा है. एंड आई वाज लाइक,
मतलब आर यू श्योर, मतलब मैं ये सोच रही हूँ कि तुम्हारे पास भी तो कुछ नहीं है, सही है, ऑर्फन्ड एट बर्थ, फैमिली ने अबैंडन कर दिया, रिलेटिव्स ने, आई थिंक द पेरेंट्स डाइड मे बी इन एन एक्सीडेंट, अबैंडन बाय फैमिली, then he was also abused by um, and then he was also abused by some, you know, like gang members. वो किसी gang के हाथों चढ़ गया था, वहाँ पे उसको misuse भी किया काफ़ी, और अपने crimes के लिए भी इस्तेमाल किया. And then he was found at, you know, train station कराची के, वहाँ से वो फिर ईदी के पास आया. So, you know, just look at his life. And he was 8 or 9 maybe that time. उस point पे he was 8 or 9. 8-9 साल का बच्चा. This is what he had to say. He came to me in my ears and he said, इसको दे दें, ये छोटा है, वो उसका कुछ नहीं लगता, इसके पास कुछ भी नहीं है, ठीक है. So I don't know what the mechanics of enlightenment and wisdom is. मुझे नहीं पता कि स्पिरिचुअलिटी के क्या मैकेनिक्स हैं. मुझे सिर्फ एक बात पता है, प्रिविलेज होना, अमीर होना, एजुकेटेड होना, being able to afford things, being born in a privileged family does not translate into being intellectual or knowing better, or perhaps, you know, you have the authority to comment and educate the masses. आप masses को देखें, उनके पास कुछ भी नहीं होगा ना. They have so much to offer. And also, between privileged and underprivileged people, there is systemic oppression, जो कि privileged class ने somehow impose किया हुआ है underprivileged लोगों पे. जो underprivileged लोग होते हैं ना, जो एक systemic oppression का शिकार लोग होते हैं, they always know more about life. They always know more about their oppressors. उनको human life, human behaviors, relational dynamics के बारे में बहुत ज़्यादा पता होता है. You know, like जो systemic oppression में victims होते हैं, they know more about the oppressors. A black person knows more about what being white means than a white person. Yeah. क्योंकि वो उसकी रेसिज्म को देखता है. वाइट पर्सन कैन नॉट अपने रेसिज्म को वो नहीं देखता, बट द ब्लैक पर्सन वो उसके रेसिज्म को पहचानता है. वो उसको पहचानता है कि यू नो, आई नो मोर अबाउट यू देन यू नो अबाउट योरसेल्फ. एंड आई थिंक that's what I mean when we say कि, you know, like, who am I to educate the masses? Right. Why am I not learning the masses, learning from the masses? It is very complex. It is much more complex than we think. You talked about that how education system जो कि colonialist ने बनाया हुआ है सारा, and उनका system जो कि slavery का result था, it was their way of making us slaves. और वो system से निकल के हमें लग रहा है कि हम बड़े educated हो गए, हम बड़े enlightened हो गए, हम बड़े wisdomous हो गए. Yeah. And that's what the colonial mindset यही है ना, मार्क्स, 2-dimensional कर दिया ना. 2 nation theory जी, आप 2 nations हैं, आप इधर हो जाए, आप उधर, जिनको ये nation वाले हैं इधर चले जाएं, जो nation वाले हैं वो इधर चले जाएं. ये जो 2 nations उन्होंने divide किए हैं, they are like 50-dimensional nations, भाई. Exactly. ठीक है, वो 2 nations के अंदर जो है वो अभी तक ये कितने फैसला nation? नहीं हो पा रहा है कि बट वी आर नॉट वन, भाई, हम बहुत अलग अलग लोग हैं सारे उसके अंदर ही. बट दैट्स व्हाट colonial mindset is. वो colonists यहाँ पर आके they were not interested in understanding the diversity of the region, the culture of the region. They were not interested in that. उन्होंने कहा 1 मिनट इंग्लिश बोलें, ठीक है, नहीं आप यू आर नॉट वाइट, ब्राउन है ना आप, पंखा दें आप, ठीक है, आप उधर हो जाएं और आप सारे पीछे चले जाएं, बस खत्म. क्या है जी? अच्छा, हिंदू और मुसलमान है, ओके फाइन, डिवाइड कर दें जी इनको. क्या चाहिए जी आपको? अच्छा, सिंपलीफाई, सिंपल कर दिया जी. हम आपका मसला बता रहे हैं, हिंदू मुसलमान अलग कर, 2 मुल्क बना रहे, खत्म कहानी, खत्म. हम कर तो दिया, इतना सिंपल सा मसला था यार, क्या प्रॉब्लम है आपको इस बात से? दैट इज द colonial mind. सिंपल सा मसला है, छोटे कपड़े नहीं पहने ना, माशरा ठीक हो जाएगा, सिंपल. दैट इज द colonial mindset. सही है, मैं बता रहा हूँ ना, मुझे समझ आ गया ये माशरा. अब मुझसे कोई क्यों पूछेगा कि मैं कौन होता हूँ कमेंट करने के लिए और ना करने के लिए, यू नो. So that's what the colonial mindset does. Privilege के अंदर भी यही होता है ना. गरीब है ना, तो इनको खाना ही तो चाहिए. खाना दे ना, खाना दे दो, खाना जो बचता है वो हम दे देते हैं गरीबों को.
लेट्स खाना खिला देते हैं ना इनको, सिंपल, गरीब लोग हैं, भूख लगती है, खाना खाते सो जाते हैं, इनको और क्या चाहिए, इनकी क्या एस्पिरेशंस हैं और जिंदगी में, वो इतना सोचते थोड़ी हैं, उनको क्या क्यों है, मतलब क्या करना है ना। और हमने सिंपलीफाई कर तो दिया मैंने, तो कराची में रहने वाले गरीब लोगों को भी खाना चाहिए, कोहाट में रहने वाले गरीबों को भी चाहिए, ठीक है, बलूचिस्तान में रहने वाले गरीब लोगों को भी खाना, सबको खाने तो चाहिए। मैंने सिंपलीफाई कर दिया, मेरे लिए कन्वीनियंट हो गया ये बिलीव करना। आई हैव लाइक मैंने एक कैटेगरी में डाल दिया उनको, ख़त्म हो गई बात। इसके अलावा आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन अंडरस्टैंडिंग कि क्या डाइवर्सिटी है, क्या लेगेसी है, एक रीजन का कल्चर क्या है, you know, I am not interested in listening. And again, I'll bring in male privilege. I'm not interested in listening to women. आप बोलती रहें, बोलें, आप बोलें भाई, मचाओ शोर, करो जो करना है करो, हम तो नहीं सुन रहे। So you are in a privileged position क्योंकि आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, सही है, but women are not. You wrote that op-ed South Asia magazine में, and living with the rapist, right? So when a woman lives with a rapist, and it is like, I mean, it's very difficult to say that it was one of my favorite op-eds that you wrote, but you know what I mean, because how important that topic is. So मर्द हजरात इसलिए नहीं शोर मचा रहे हैं क्योंकि they don't have to live with their rapist. बट वुमेन डू। अफगानिस्तान में अभी रिसेंटली जो है वो एक छोटी बच्ची की शादी करा दी थी उसके रेपिस्ट के साथ, बिकॉज दैट गाय रेप्ड हर, सो नाउ यू नो शादी करा दी है कि अब तो उसके साथ ही रहना है उसको। सो आप मुझे बताएं ना, मर्द हजरात आएंगे सड़कों पे या औरतें आएंगी, कौन आएगा इन दोनों में से? इट इज योर प्रिविलेज कि आपको जरूरत ही नहीं है सिस्टम को चेंज करने की, बट जिनके ऊपर गुजर रही होती है, जो रिसीविंग एंड पे होते हैं, उनको होती है जरूरत सिस्टम को चेंज करने की। बट आपका प्रिविलेज आपको रोक रहा है उनकी बात समझने में। आप बैठ नहीं रहे ना, आप बैठ के सुन नहीं रहे कि मैं 2 मिनट के लिए उसको उतार के साइड पे रखूं, ठीक है, अपना मेल प्रिविलेज, एंड देन आई एम एक्चुअली लिसनिंग टू कि ओ असल में आप ये कह रहे हैं कि आपको ऑब्जेक्टिफाई कर दिया है और आपको बिल्कुल एक जस्ट यू नो लाइक अ पीस ऑफ फ्लैश की तरह ट्रीट कर दिया है कि आपकी जो आइडेंटिटी है वो सिर्फ इस बात में है कि आप खाना बनाएं, एक आदमी को सर्व करें, उसके बच्चे पैदा करें और मर जाएं, एंड दैट इज ऑल योर लाइफ। सो यू आर नॉट, मतलब अगर आप अपने अम्मी अब्बू के घर भी जा रही हैं तो वो भी आपको इजाजत लेके जानी है, क्योंकि यू नो दैट्स वेयर योर लाइफ हैज कम टू, एंड ओ माय गॉड दैट इज वेरी सफोकेटिंग, दैट इज वेरी सफोकेटिंग। यू कैन नॉट वॉक आउटसाइड, आप फ्रेश हवा के झोंके नहीं आप सुकून से ले सकते, कोई ना कोई देख रहा होगा आपकी तरफ, दैट इज सफो, यू आर राइट, यू नो, द मिनट यू डू दिस, द मिनट men start doing this, they might actually start working towards you know making it a safer place for women. बट सबसे पहले अपना उसको हटाना पड़ेगा ना, उस प्रिविलेज को यार, अपने सर से हटाओगे, बैठोगे तो ही तो सुनोगे। सो दैट्स व्हाट वी डू। हमने क्या किया कि प्रिविलेज लोगों को, इवन इन द केस ऑफ मैन, हमने कहा जी आप खवातीन को जी सिखाएं बहिश्ती ज़ेवर में, एंड आई कोट के जो कुरानी मसाइल हैं, जो इस्लामिक इश्यूज हैं, तो अगर ख़वातीन को कुछ पूछना है इस्लाम के बारे में तो वो जो हैं अपने जो मर्द हजरात हैं घर के, क्योंकि सिर्फ मर्द हजरात अलाउड होंगे बाहर जाके मस्जिदों में जाना या किसी भी आलिम दीन से मिलने के लिए, तो वो अपने मर्द हजरात से जो है वो इस्लाम सीखेंगी। मतलब मर्द हजरात उनको वही इस्लाम सिखाएंगे ना जो what works for them. how is that, like किसी को ये बात समझ में नहीं आ रही है कि आप एक्सेस कैसे खत्म कर सकते हैं। So we told men that they are the ones who would preach. They don't know anything about being a woman. So हमने ये वो लगा दिया है कि क्यों, अब आपको कुछ आता है या नहीं आता, अब उस आदमी को कितना इस्लाम आता है और कितना नहीं आता है ये इक्वेशन में ही नहीं है, लेकिन उसको बोल दिया जी आप सिखाएंगे। जी उसको खुद कुछ आता है, पहले ये तो देख लो उसको खुद कुछ आता है कि नहीं आता। लेकिन नहीं जी, इस्लाम की बात मर्द हजरात कर सकते हैं, पर्दे की बात जी मर्द हजरात करेंगे नहीं। जी 50 डिग्रीज है, फेस तो कवर करना है, मैं बोल रहा हूँ ना, हम बता रहे हैं ना आपको, नहीं आपने सुननी नहीं। अच्छा अभी हज हुआ था अभी, तो उसके अंदर जो है वो द सेलिब्रिटीज हु वेंट फॉर हज एंड दे वर फिल्मिंग देयर होल जर्नी एज वेल। सो जब वो हज से वापस आ रहे थे तो उनके हेड शेव नहीं हुए हुए थे, एंड अ लॉट ऑफ पीपल क्रिटिसाइज। तो उन्होंने फिर बड़े उससे क्लैरिफाई किया कि एक्चुअली ये अलाउड होता है कि इफ़ यू डोंट वांट टू शेव योर हेड कम्प्लीटली,
तो आप मतलब थोड़ी सी लेंथ आप कम कर सकते हैं, सो इट्स नॉट मैंडेटरी। क्यों भाई, करो हेड शेफ, पूरी करो ना, ये क्या बात हुई? किसने कहा दिया आपको, ये क्या बात हुई? अदारी रख लें, कोई मसला नहीं है, ना रखें, सुन्नत है, कर लें। अच्छा, वाह यार, अच्छा ये हो रहा था, हम कर रहे थे ये अलाउ। अच्छा, खवातीन के मैं बोलूं फिर खवातीन को ये अलाउ कर दें, फिर खवातीन के लिए फिर ये भी नहीं 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 नहीं, no leniency, I'm so sorry. So that is what I'm saying. So somebody who was just privileged, they decided कि हमारे पास सारी wisdom है जी, हम बताएंगे। But what you don't see, सही है, वो आपको, जिनको आप oppress कर रहे हैं मजहब को इस्तेमाल करके या कोई भी सिस्टम इस्तेमाल करके, उनको पता है कि आप क्या कर रहे हैं, आप अपना प्रिविलेज किस तरह से इस्तेमाल करें। नहीं भी शेव करें सारे आइडिया, क्या बात है? कोई लीनियंसी नहीं, करो भाई, क्या हो गया? क्या अच्छा लगने के लिए आप नहीं कर रहे हैं ना, आपको प्रॉब्लम हो रही है, अच्छे नहीं लगेंगे आप, तो हम क्या करें जी? हम क्या करें? हम क्यों कंसिडर करें इस बात को? सेलिब्रिटीज हैं, दे कैन नॉट शेव देयर, हम क्यों कंसिडर करें? क्यों इस्लाम कंसिडर कर रहे हैं? और अगर कर रहे, आई बिलीव कि इस्लाम कंसिडर करता है इस चीज को। मैं नहीं कह रही हूँ कि करना चाहिए, मैं ये कह रही हूँ कि अगर मैं इसको रोल रिवर्स कर दूं तो लीनियन से आपको वो खवातीन के मामलात में तो नहीं अच्छी लगती। सो अगेन दिस इज कमिंग फ्रॉम लाइक अ वेरी प्रिविलेज्ड प्लेस वेयर मेन वर गिवन दिस प्रिविलेज कि जी आप का है मजहब पूरा, आपने जो करना है करें इसके साथ, और अब आपको कुछ आता है या नहीं आता है, बट यूज इट फॉर योर बेनिफिट एंड यूज इट अगेंस्ट वुमेन, तो मसला ही नहीं। इसमें एक ये वाला सीन भी है कि मर्द हजरात, बहुत से मर्द हजरात आपको मिलेंगे मेरे ख्याल में, काफ़ी लोग होंगे जिनकी दाढ़ी नहीं होगी। आपको क्लीन शेवन बहुत लोग मिलते हैं लाइट स्टबल के साथ, उन्होंने डिज़ाइन की होती है। वो सोसाइटी से ऑस्ट्रेसाइज नहीं होते, वो उनको किसी महफिल से निकाला नहीं जाएगा या उनको ताने नहीं मिलेंगे, ठीक है? वो रखेंगे तो उनको अप्रिशिएट बहुत किया जाएगा, बट वो नहीं रखेंगे तो ऐसा नहीं है कि वो किसी क्लीक का हिस्सा नहीं बन सकते या किसी ओवरऑल सोसाइटी का पार्ट नहीं बन सकते। बट अगर एक औरत है जो एक सर्टेन वे में ड्रेस करती है, जो आपके जो भी आपका स्टेटस को है उसको पसंद नहीं है, तो दैट वुमेन विल नेवर बी पार्ट ऑफ द मेन स्ट्रीम सोसाइटी। Yeah, and I think it is also very important to say here कि मैं personally I don't have any problem with anybody. I mean, I'm nobody to have a problem with how people like follow their religion. किसी को किसी पे वो एतराज़ नहीं होना चाहिए. The only point that I was highlighting, मुझे ऐसा लगता है कि Islam is not as absolute and as rigid that जिस तरह से उसको बना दिया, मुझे नहीं लगता है ऐसा, ठीक है? And the reason that I'm saying this, कि the only point that I was highlighting is how privilege is confused with intellect. And this is what has happened with religious preachings as well. अभी recently किसी मौलाना साहब की वो आ रही थी, अभी एक मोमिना इकबाल का एक केस हुआ है, वो मेंबर पे बैठ के एक इंतहाई प्राइवेट मैटर को वो कर रहे हैं कि ये मोमिना जो एक्ट्रेस है ये सही नहीं है ना, बट इज लाइक मौलाना साहब क्या कर रहे हैं आप? आई मीन मैं कह रही हूँ इस तरह से, बहुत सारे लोगों सोशल मीडिया वर लाइक कि आई एम सॉरी बट लाइक एक केस चल रहा है एक एक्ट्रेस का और एक और उनका कोई अपना प्राइवेट मैटर है भाई, वो लाइक लीगल प्रोसीडिंग्स हो रही हैं, और एक मौलाना साहब मस्जिद में बैठ के प्रोबेबली वो यूज किया हुआ होगा ना उनको, बट दैट्स व्हाट आई एम सेइंग हाउ अ मैन हैज दैट पोजीशन जबकि उनको कुछ नहीं पता उसके मजहब के बारे में। सो वो पोजीशन कैसे मिल रही है? दैट्स द प्रिविलेज। सो आर यू सेइंग कि किसी भी खातून के पास इतना इंटेलेक्ट नहीं था कि वो कभी जो है वो बात कर सके मजहब के अंदर? इज दैट व्हाट यू आर सेइंग? सो ये बात जब हो रही है मेंबर पे तो वो प्रिविलेज पोजीशन से हो रही है जबकि उसमें कोई एनलाइटनमेंट नहीं है। ये मतलब पता नहीं क्या है, like I don't even know what to like words, but I know words but I'm just filtering it, I can't say it on camera, but like so this is what privilege is. अब colonialism के तुमने binaries के बारे में बात की, how they used to fit everything in a box. I just want to say something and then we move on to the next part. Is that के in my opinion what I feel is that colonialist का बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड फंडा था ना, बड़ा इजीली हम करते हैं डिवाइड एंड रूल, राइट? जितनी डिविजन्स कम होंगे उतना रूल आसान होगा। इट्स प्रीटी इजी टू रूल समथिंग जिसकी बहुत ज़्यादा डिविजन्स नहीं हो। अगर मैं एज अ टीचर जो है वो अगर
3 ग्रुप्स को इकट्ठे पढ़ा रहा हूँ, मेरे लिए मुश्किल होगा एज कम्पेयर टू 2 ग्रुप्स को पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, उनको अपना नैरेटिव समझाना आसान होता है, बॉक्स में डालो, बॉक्स में डालो, बॉक्स में डालो, रूल करेंगे। ठीक है, जब कॉलोनियलिस्ट जो हैं वो गए, अभी हम बहुत बुरा भला कहते हैं ना वेस्टर्न, उसको वेस्टर्न, और जितना वेस्टर्न इन्फ्लुएंस हमारे अंदर घुसा हुआ है, ठीक है, इतना ज़्यादा है हमारे अंदर वेस्टर्न इन्फ्लुएंस कि उस दिन हम लोग याद है डिस्कशन कर रहे थे कि वेस्ट में लोग डिनर 6 साढ़े 6 बजे कर लेते, वी स्टिल ईट डिनर एट 10, एंड इसकी क्लॉक ये है, इसकी रीज़न ये है कि हम लोग अंग्रेज़ों को खाना सर्व करते थे और जब वो खा लेते थे तो हम खाते थे रात में, एंड वी स्टिल हैव दिस हैबिट्स। इस हद तक आपने जो है वो कॉलोनियलिज्म आपके अंदर रचा बसा हुआ है, एंड यू हेट देम, यू यूज द सेम फिलॉसफी। अभी देखो वो यही है ना, एक जुल्म करने वाला है, एक जुल्म सहने वाला है, कॉलोनियलिस्ट और जिन पे वो रूल कर रहे थे वो स्लेव्स थे। अब वही फॉर्मेट आगे आप लेकर चलें, आई फील दैट men are the colonialists of this world currently, that's what I feel, right? क्योंकि कॉलोनियलिज्म की लेगेसी को आगे लेके जाने वाले कौन है? If I have to just say it, I feel that because we are doing that, हम भी जेंडर को डब्बों में डालने की कोशिश करते हैं, राइट? अभी कितने अरसे बाद जाके जो है वो ट्रांसजेंडर्स को आपने जो है वो एक्सेप्ट किया, राइट? हालांकि हमारी मुस्लिम हिस्ट्री में ट्रांसजेंडर्स वर ऑलवेज पार्ट ऑफ द मेन स्ट्रीम सोसाइटी। ये वेस्टर्नाइजर्स थे, ये वेस्टर्न लोग थे, ये कॉलोनियल कॉन्सेप्ट था जो ट्रांसजेंडर्स को जो है वो इतना इन्होंने साइड लाइन किया था। वो हमेशा आपके मुगल्स के सबसे, ये जो जितने रूलर्स होते थे उनके वो होते थे, क्या कहते हैं उनको, जिनके राज पता होते हैं जिनको सबके, ठीक है, वो ट्रस्ट करते थे, अपनी रानियों के पास छोड़ के जाते थे, दे यूज्ड टू ट्रस्ट देम विद द होल थिंग, राइट? तो वी डोंट रियलाइज दिस कि हम कॉलोनियलिज्म को किस हद तक जो है वो उसी चीज़ को परपेचुएट कर रहे हैं आगे। यू नो, ये फेमिनिस्ट है, इसने इसके खिलाफ बात कर दी तो ये है, इसने पर्दा कर लिया तो ये है, इसने जीन्स पहन ली तो ये है, इसने स्कार्फ के साथ टी शर्ट पहन ली तो ये है। ठीक है, वी आर जस्ट ऑब्सेस्ड विद पुटिंग थिंग्स इन बॉक्सेस, और जिसको बॉक्स में नहीं डाल सकते देन वी बैन इट, ऐसा है। उसको हम ऑस्ट्रासाइज कर लेते हैं। तो मूविंग ऑन, इतने बाइनरीज हमने डिस्कस किए, एक और बाइनरी दैट आई फील इज अराउंड फेलियर एंड सक्सेस इन दिस वर्ल्ड। आई फील के व्हेन यू फेल, सॉरी, स्टार्टिंग विद सक्सेस, व्हेन यू सक्सीड देन इट इज एट्रीब्यूटेड कि आपने बड़ी मेहनत की है, ठीक है, आपकी लगन और आपके टैलेंट की वजह से, एंड इफ यू फेल इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। So why is this my responsibility? You don't know that I have worked hard as well. So what system is in play here? You talked about capitalism, right? So I want you to elaborate on this as well. कि why is it my responsibility even if I am working hard? मैं उतनी मेहनत कर रहा हूँ यार जितना नेक्स्ट बंदा कर रहा था, ठीक है, वो क्यों वो सक्सीड कर गया तो वो उसको बड़ी वाह वाह हो रही है, मैं नहीं कर पाया, ठीक है, मैं नहीं कर पाया, इसमें मेरी गलती क्या है? The thing is, Max, हमारे कैपिटलिस्ट सिस्टम ने जो एक चीज की थी जिसकी वजह से ये हुआ है, वो ये हुआ है कि थिंग्स दैट ब्रिंग मनी दे आर वैल्यूएबल। ठीक है, सो बर्तन धोना औरतों का काम है, लेकिन अगर आप एक होटल में बर्तन धो रहे हैं, उसका आपको पैसे मिलते हैं, देन इट्स अ जॉब। सो खाना तो औरतें पकाएंगी, लेकिन सारे शेफ्स आदमी हैं, सही है, बट और यू नो लाइक men are running the hospitality industry in Pakistan. शेफ्स जो है वो जो होटल्स में, रेस्टोरेंट्स में जो कुकिंग कर रहे हैं, they are men. लेकिन खाना बनाना तो औरतों का काम नहीं था। सो व्हाट हैपेंड इतना स्ट्रिक्टली अगर औरतों का काम था तो फिर व्हाट हैपेंड एक्चुअली ना, मतलब हुआ क्या? फिर आपने क्यों बनाना शुरू कर दिया खाना? पैसे मिल रहे हैं, तो अगर पैसे मिल रहे हैं तो वो वैल्यूएबल है। सो कोई इंसान जो पैसे नहीं कमा रहा वो वैल्यूएबल नहीं है, तो ये आपको सिस्टम ही बताएगा। और फिर होता ये है कि जो पैसे कमा रहा है तो वो कौन किससे ज्यादा पैसे कमा रहा है, तो जो ज्यादा पैसे कमा रहा है तो वही तो ज्यादा उस सिस्टम के अंदर सेलिब्रेटेड होगा, अप्रिशिएटेड होगा, ठीक है। जिसकी जो एसयूवी में है, ठीक है, तो वो बेसिकली अनस्पोकन अथॉरिटी है उसकी पार्किंग लॉट के अंदर, अनस्पोकन है, अनस्पोकन है, right? So yes, that's what the system has done. So even when we were talking about कि आप social systems के अंदर जब हम बात कर रहे होते हैं, somebody
who thinks that they're eligible to talk about what's going on, ये क्या हो रहा है भाई माशरे में, right? तो उसको क्या लग रहा है कि वो कैसे eligible है? I have the biggest car, I live in a mansion, I am foreign educated, so of course मैं आके बताऊं गरीबों तुम लोग क्या कर रहे हो यार, तो मैं बताऊंगा ना आपको civilized society के बारे में. Another thing that came up when you were talking about binaries और education system की जब आप बात कर रहे थे, this whole concept again, वो privilege को confuse करने वाली मैं बात कर रही हूँ. Somebody was जो कि खुद ग्रामर स्कूल के पढ़े हुए, उनके अपने बच्चे ग्रामर स्कूल जा रहे हैं, ठीक है, एंड दे वर सेइंग कि लाइक उर्दू को हमें अच्छी उर्दू बोलते हैं ना वो लोग, अच्छा उर्दू बहुत अच्छी है उनकी, इट्स नॉट लाइक दे हैव नॉट अबैंडन देयर लैंग्वेज, ठीक है, सो जस्ट सेइंग इट फॉर द कॉन्टेक्स्ट, एंड दे वर टॉकिंग टू मी एंड दे वर लाइक यार उर्दू बोलनी चाहिए, हमारे यहाँ ना लोग उर्दू को वो कर लेते हैं, अबैंडन कर लेते हैं और सारा कुछ है, पता नहीं इंग्लिश के पीछे पड़े रहते हैं, और ये अगेन लाइक द कॉलोनियल हैंगओवर कि इंग्लिश बोलनी और सारा कुछ है. तो वो फ्लुएंसी के साथ बात करते हैं, 3-4 दफ़ा जो है वो मुल्क से बाहर जाते हैं, उनके जो ग्रैंड चिल्ड्रन हैं, ठीक है, वो सिर्फ इंग्लिश बोलता है, ठीक है, एंड इवन लाइक उनके बेसिकली जेनरेशनली इंग्लिश बोलते हैं, नॉट अगेन डिड नॉट अबैंडन उर्दू. सो अगेन आई नो व्हाट दे वर सेइंग, राइट, बट उनकी पूरी जनरेशन और उनके जो सबसे जो अभी जनरेशन जेन अल्फा है बेसिकली उनकी फैमिली की, वो सिर्फ इंग्लिश बोलते हैं क्योंकि दे ट्रैवल और सारा कुछ. लेकिन बट व्हाट दे वर सेइंग वाज कि यार यहाँ लोगों को उर्दू बोलनी चाहिए. you know like the disparity, the two nation theory, the colonial mindset. मैं तो बोलूंगा ना इंग्लिश, तुम लोग क्यों बोल रहे हो इंग्लिश? तुम लोग क्यों अपने बच्चों को इंग्लिश सिखा रहे हो यार? तुम लोगों ने क्या करना है इंग्लिश सीख के? उर्दू बोलो, उर्दू सीखें आप लोग यार, आप इंग्लिश के पीछे क्यों हम तो पढ़ेंगे इंग्लिश के पीछे बिकॉज वी आर बेटर ना, हम तो सोसाइटी के अपर एलीट क्लास में आते हैं, ठीक है, तो ऑब्वियसली मेरे पोता पोती उर्दू थोड़ी बोलेंगे यार, वो तो रहते ही कनाडा यूएस में, ठीक है, हमारे बच्चे तो बोलेंगे क्योंकि हम तो अरे यार हम तो आपसे डिफरेंट हैं यार, हम तो बोलेंगे. मैं फ्लुएंसी के साथ इंग्लिश बोल क्योंकि मुझे जाना होता है ना बाहर, सही है, तो मैं तो नहीं वो, बट आप क्यों इंग्लिश सिखा रहे हैं? अपने इंग्लिश मीडियम इंग्लिश के पीछे पड़े हुए हैं जी. इंग्लिश सीखनी है सबको जी, इसी वजह से इंग्लिश सीखनी है उन सबको भी जिस वजह से आपने सीखी है इंग्लिश. So if you go, abroad and you don't know how to speak English, you will be in a big trouble. And that's why you know how to speak English. आपके पोता पोती इसलिए इंग्लिश बोल रहे हैं because that's what you have achieved. That's what you think you have achieved in your life. ठीक है, पाकिस्तान तो आपका मतलब वो है ना, मतलब summer house type situation है, ठीक है, you don't live here, right? So it's justified for you. लेकिन आप यहाँ क्यों आना चाह रहे हैं? क्या आप चाह रहे हैं कि आपकी अगली की आपकी जनरेशन, आप तो कनाडा थोड़ी जाना है, आप क्यों इंग्लिश सीख रहे हैं, राइट? एंड अफसोस की बात इस पे है, गुस्सा मुझे इस बात पे आ रहा होता है कि दिस ओपिनियन ऑफन ये जब प्रेजेंट किया जा रहा होता है ना ये ओपिनियन, तो ये बताया जा रहा होता है कि एक्चुअली हम तो कॉलोनियलिज्म के खिलाफ बात कर रहे हैं, कि हम तो इसके अगेंस्ट हैं. अच्छा, तो अपने ऊपर अप्लाई करो सबसे पहले. आप जब अमेरिका के जब आप खड़े हो ना हीथ्रो एयरपोर्ट पे खड़े हो, तो आप उनको बोले इंग्लिश नहीं समझ में आती मुझे, फिर देखो क्या होता है. ऑल्दो आप कर लो जितनी इंग्लिश बोलनी है, ग्रीन पासपोर्ट पे आप साथ वही होगा जो होता है, बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि तो फिर अपने ऊपर अप्लाई करो ना. अपने बच्चों को क्यों सिखा रहे हैं आप इंग्लिश? नहीं सिखाओ, अपनी जनरेशन को नहीं सिखाओ. उसके बाद लाइक इतनी रिडंडेंट डिबेट है ना ये इंग्लिश वाली और ये वाली कि जी उर्दू को वो करना चाहिए और इंग्लिश जो है वो नहीं सीखनी चाहिए. तो बाकी ना बढ़े आगे, सही है, जो उनको सर्वाइवल के लिए चाहिए है, इसमें कोई शक नहीं है कि एवरीबडी शुड वैल्यू देयर ओन लैंग्वेज, राइट? अगेन going like on the risk of repeating myself, everybody does not speak Urdu. हर किसी की फर्स्ट लैंग्वेज उर्दू नहीं होती. आई मीन आई वाज बोर्न एंड रेज्ड इन कराची, सो मेरी फर्स्ट लैंग्वेज उर्दू ही है, बट आई नो दैट there is just so many languages spoken in this country, and yes, for people who want to survive in this system, who are also underprivileged, उनको आगे बढ़ना है, उसके लिए वो आपकी ये जो convenient एंटी कॉलोनियल मूवमेंट है ना, कोई जो आपने अपनी कन्वीनियंस को उस पर चला ली है, उनके ऊपर अप्लाई नहीं होती.
सही है, आप उनको ये बता रहे हैं कि जी इंग्लिश ना सीखें तो क्या करें जी, वो कहाँ बैठे रहे, वो यहीं पाकिस्तान में बैठे रहे, और पाकिस्तान में इंग्लिश चलती है तो वो बैठे अनपढ़ बैठे रहे, वो ना सीखें कुछ। बेसिकली वही सिस्टम है, जो सिस्टम है उसी को कंटिन्यू करना चाह रहे हैं, राइट? वो ही एस्टैब्लिश करना चाह हम रहे हैं। बोलेंगे ना अंग्रेजी, आप क्यों बोले रहे हैं, आप मत हम सीखें। प्रिविलेज्ड हैं, आप अंडर प्रिविलेज्ड हैं, आपको जरूरत नहीं है पुल के उस पार आने की, आपको बिल्कुल जरूरत नहीं, है, आपको बस। क्या करना है यार, आप लोग मतलब तुम थोड़े साला गुलाम लोग, हाँ, तो हमारे आपको क्या जूती के करना है नीचे ही यार। रहे। हाँ, तो आप क्यों सीख रहे हो यार, मेरी तो जनरेशन्स बोलेंगी, ग्रामर स्कूल में भी जाएंगी, तो आप उर्दू मीडियम में पढ़ाएं ना अपने बच्चों को। Yeah. मुझे द थिंग इज के आई ऑल्सो नो फैमिलीज मग्स जो जिनके बच्चे बाहर सेटल हुए हैं एंड दे स्पीक, आई नो अ पख्तून फैमिली जो कि जर्मनी में रह रहे हैं, सारे बच्चे उनके जर्मनी में पैदा हुए हैं यार, वो आपस में पश्तो में बात करते हैं। सही है, वो आपस में पश्तो में बात नहीं, देर अफगानी, वो आपस में अफगानी में बात करते हैं, ठीक है, एंड होता है ऐसा। सही है, तो यू नो लाइक अगर वो ये बात बोलते हैं देन दे हैव दे हैव सेट अ प्रेसिडेंट एज वेल। कुछ समझ में भी आ रही है उसकी। अच्छा, the cool thing about I have अफगानी स्टूडेंट, ठीक है, एंड जब मैं उसको देखता हूँ ना, अपनी मदर से अक्सर बात कर रहे होते हैं हम लोग आपस में, इन अ लैंग्वेज ऑब्वियसली आई डोंट अंडरस्टैंड, बट आपको पता लग जाता है कि वो अफगानी है, मोस्ट लाइकली अफगानी में आपस में बात करें, वो लोग भी आपस में अफगानी में बात करें। तुम अक्सर नहीं कहती, यदि केपी इज द मोस्ट नॉन कॉलोनियल पार्ट ऑफ पाकिस्तान, It's the activism capital of Pakistan. Huh? That's what I said. The activism capital of Pakistan. एक्टिविज्म कैपिटल KP, ऑफ yes. पाकिस्तान। That's how I feel, yes. Yeah. और तुम ये भी अक्सर बात करी होती हो कि कॉलोनियलिज्म का सबसे कम अगर आपने असर देखना है ना, वो वहीं पे आपको नजर आएगा, वहाँ पर केपीके में, बिकॉज दे हैव द कल्चर्स रनिंग बैक टू वे बिफोर पार्टीशन। वो कहते हैं कि भाई हम तो, तुम कहती हो एक स्टेटमेंट बोलती हो, हम तो यही है, पाकिस्तान बाद में बना है, हम तो तब से यही है, यू नो। तो हमने प्रिविलेज क्लास के बारे में बात की, ज़ैनब काफ़ी सारी बात की, that how privileged class, is basically mistaking their privilege for enlightenment, और उस चक्कर में जो है वो they feel that they have this upper hand to educate masses, right? And they don't know the realities, क्योंकि उनकी क्या social realities हैं, जो हमारे लोअर सोशो इकोनॉमिक बैकग्राउंड के लोग हैं। इसी तरह जो प्रिविलेज लोग हैं उनकी भी एक रियलिटी है। तो although I know that we come from privilege, right? But issues और traumas और ये सारी चीज़ें तो हमारी भी होती हैं ना। ऐसा ही है। द थिंग इज मक्स, ये तो डिबेट है भी नहीं। तो Okay. ये प्रिविलेज कोई ट्रॉमा की क्लासिफिकेशन के लिए तो यूज हो नहीं रहा है कि हु विल बी ट्रॉमेटाइज्ड, हु विल हैव मेंटल हेल्थ स्ट्रगल्स, तो ये तो कोई क्लासिफिकेशन है ही नहीं। हाउएवर स्टैटिस्टिकली पीपल हु हैव एक्सपीरियंस्ड रेसिज्म, poverty, immigration, war, and other systemic oppressions, they will be statistically more prone to being traumatized. मतलब मैंने आपको एक एग्जांपल दी थी कि मेल प्रिविलेज है, एक वाइट आदमी के पास भी है, एक ब्लैक आदमी के पास भी है, दोनों के पास मेल प्रिविलेज है, ठीक है। एक वाइट आदमी और एक ब्लैक आदमी के बीच में फर्क आ रहा है रेसिज्म का। सो इस प्रिविलेज, ये प्रिविलेज था ना, यहाँ पर आ गया सिस्टमिक ऑपरेशन की एक लेयर, उसने ऐड कर दिया। सो मैं ये कह रही हूँ कि ये जो वाइट आदमी था, इसके पास इसकी नॉर्मल जिंदगी चल रही थी, उसके जो भी उसने अपनी जिंदगी में स्ट्रगल किया व्हाट नॉट, ठीक है। बट व्हेन यू ऐड दैट लेयर ऑफ रेसिज्म एंड नो नाउ दिस ब्लैक मैन, नाउ दैट इज अ लेयर, सही है। तो स्टैटिस्टिकली हायर चांसेस कि व्हाट ही हैज एक्सपीरियंस्ड वो आपने एक्सपीरियंस नहीं किया, ठीक है। ये सिस्टमिक ऑपरेशन की लेयर है। नाउ बिल्कुल वैसे ही दिस इज अ गाय, रेगुलर गाय, एंड दिस इज द लेयर ऑफ प्रिविलेज, बिलियनर का बेटा। This is the layer of privilege. I'm not saying that this regular guy will not have the regular struggles, the human struggles and सारा कुछ, but then you cannot ignore the layer of privilege. It is there. ठीक है। और again I'm talking about the truest sense of privilege, not for the mistaken sense कि आपको लगता है कि हम struggle नहीं कर रहे, नहीं नहीं, मैं privilege की बात कर रही हूँ, ठीक है। So yes, there is that layer of privilege, and the thing is ये layers हमेशा होती हैं, ये एग्जिस्ट करती हैं, ये सोशल सिस्टम्स में होती हैं।
जब मैं प्री पॉड में भी आपसे बात कर रही थी तो मैंने ये कहा था कि लाइक द क्वीन ऑफ इंग्लैंड, यार मैंने अभी तक गूगल नहीं किया उनका नाम. सो देयर वाज किंग जॉर्ज द थर्ड की जो क्वीन थी, शी वाज अ ब्लैक वुमन. शी वाज अ ब्लैक वुमन. हिस्ट्री डिड नॉट रिकॉर्ड दैट. सो उनके जितने भी पोर्ट्रेट्स बने थे वो जो उनकी स्किन है वो वाइट ही है, जो स्किन कलर उनका रखा हुआ था वो वाइट ही रखा हुआ था. शी वॉज नॉट रिकॉर्डेड एज अ ब्लैक क्वीन, राइट. लेकिन उनको जो जिस जगह से वो बिलोंग करती थी वो जगह एक्वायर करनी थी, एंड दैट्स व्हाई दे हैड टू मैरी अ ब्लैक वुमन, क्योंकि उस पॉपुलेशन को उन्होंने एक्वायर करना था. एंड दैट्स व्हाई लाइक शी बिकेम द क्वीन. सो नोबडी रिकॉर्डेड दैट. नाउ क्वीन ऑफ इंग्लैंड ज्यादा प्रिविलेज्ड कोई हो सकता है? नहीं. क्वीन ऑफ इंग्लैंड, Yeah. right? But because she was a woman, the system was against her. The system was rigged against her. So she was a queen in this system, and there was that layer. So even though आप queen होंगे, but this is the layer of systemic oppression. So वो layers होंगी उसके अंदर. Not only she is a woman, she is a black woman. Yeah. So not only there was gender-based discrimination, but there was racism. Yeah. She was the queen and she could not do anything कि मुझे मेरी स्किन कलर क्यों चेंज कर रहे हो भाई साहब तुम लोग पोर्ट्रेट के अंदर. History did not report it. Right. And that's how the systemic oppression works. So no, this is not a classification for any okay, who struggles the most, and no, but this is for privileged people, this is important to know okay, yes, your privilege is there. It has served you in the most materialistic ways. Yeah. Okay? And for people, while yes, it's one thing कि आप जब मासेस जिनकी हम बात कर रहे होते हैं, ठीक है, और वो देख रहे होते हैं तो बहुत सारे लोग इस तरह से प्रेजेंट कर रहे होते हैं कि आप ये करें, फिर आप ये करें, फिर आप वो करें. फिर वो बेचारे वो सब कुछ करते हैं लेकिन उनसे नहीं हो पा रहा होता, और फिर उनको अपना आप बहुत इनएडिकेट महसूस होता है कि यार जब ये कह रहा है कि इसने ऐसे ऐसे करके इतने पैसे कमा लिए, इसने ऐसे ऐसे किया और सब कुछ इसकी लाइफ सेट हो गई, तो फिर मेरी क्यों नहीं हो रही? दैट्स व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पीपल टू अंडरस्टैंड कि दे आर टॉकिंग फ्रॉम अ प्लेस ऑफ प्रिविलेज एंड यू डोंट हैव दैट. दे हैव नो आइडिया व्हाट योर लाइफ इज अबाउट, एंड सो यू शुड क्वेश्चन दैट. कि जब आप किसी का प्रिविलेज देख रहे हो, जब वो बैठ के कह रहे हैं कि जी हम मासेस को एक्सप्लेन करेंगे, उनको कुछ नहीं पता आपकी जिंदगी के बारे में. सो दिस awareness is also very important for the people at the receiving end of this confusion जो कि privileged लोगों के साथ हो जाती है कि the reason कि their advices and suggestions and whatever it is that they are trying to teach you is not working for you, it does not apply to you. उनको नहीं पता. सही है. आप उनको चले मैं अगर इसको बिल्कुल सिंपल कर दूं, वेदर कंडीशंस का भी नहीं पता मासेस की वेदर कंडीशंस के. मैं अगर आपको बिल्कुल सिंपल बोलूं, आपको वेदर कंडीशंस के बारे में भी नहीं पता लोगों की. तुम लेयर्स की बात कर रही थी. एक चीज जो तुमने क्या प्रिविलेज की बात की ना तुमने, हमने वैसे डिस्कस भी किया था प्री पॉड के अंदर, जो वाइट व्लॉगर्स हैं जो आजकल बहुत ज्यादा पाकिस्तान आ रहे हैं. मुझे उनके पॉडकास्ट देखने में ना बहुत फैसिनेटिंग लगते हैं. मुझे उनके पॉडकास्ट द वे पाकिस्तान इज, आपको अच्छा लग रहा होता है कि यार वो आ रहे हैं पाकिस्तान और दे गेटिंग गुड ट्रीटमेंट एंड दे आर एंड यू आर फैसिनेटेड बाय इट. एंड जब हम डिस्कशन कर रहे थे देन आई आल्सो रियलाइज कि मुझे क्यों इतना वो फैसिनेट करे, क्योंकि आई एम नॉट ट्रीटेड लाइक दैट इन पाकिस्तान. यू नो, आई एम समबडी हु कम फ्रॉम प्रिविलेज, राइट? देन तुम्हारे वाला ही एक्शन करता हूँ मैं, हाथ रखा है उसने, एंड आई हैव अ प्रिविलेज, राइट? Now this white vlogger has come. He has another privilege, right? And he's saying Pakistan is so good, you don't have to pay money and their people are so kind. And suddenly आपको लग रहा है कि यार ये अभी मैं जाऊंगा तो मुझे तो स्कैम होने का भी टेंशन है. रिक्शे वाला पैसे नहीं कम करेगा, फ्री तो बहुत दूर की बात है, सब पैसे लेंगे मुझसे. Suddenly like यार ये क्या हो रहा है? Everybody wants to live in white vloggers Pakistan. Exactly. And again, like I mean, मैं थोड़ा सा ग्रे है मेरा ओपिनियन इस बारे में. आई एम हैप्पी दैट दे आर हियर एंड आई एम हैप्पी कि टूरिज्म भी हो रहा है. So I will talk about vloggers white vloggers who have been to Afghanistan and they have all good things to say about Afghanistan. Even Piers Morgan के शो में भी आए थे वो, and they were like arguing with him कि आप जिन अफगानिस्तान और इन लोगों के बारे में बात करते हैं, I've been to these countries and they are not what you are telling the world. And that's when like I wanted to scream and I was like, Afghanistan is not what Afghanistan is not what, it's not like that for you. Exactly. Because you are a white man.
Of course Afghanistan is not like that for you, right? So आप हम पे wisdom नहीं झाड़े ना, हमें नहीं बताएं अपनी wisdom जो आपको privilege के साथ मिल गई है, you know. It's not like that for you. The streets of Pakistan मेरे लिए नहीं है भाई, born and raised in Karachi. मैं नहीं घूमी आज तक इस तरह से, कर ही नहीं सकती हूँ मैं. So you know, like again I agree कि Pakistan is very like बहुत generous लोग हैं यहाँ के, हॉस्पिटेबल भी हैं, ख्याल रखते हैं, मेहमान नवाजी एंड हमारी वैल्यूज हैं, ऐसा नहीं है. बट देन यू नो लाइक यू सेड आई वांट टू लिव इन दिस पाकिस्तान जो कि वाइट, बट देन अगेन फॉर वुमेन no, it's just you know like bro, you get to do all these things. I can't. Even between women, there's a brown woman and there's a white Yeah, woman. exactly. That वो याद है privilege is there. हमने we follow a comedian and he says that even there there is like a, वो explain कर रहा था, there's a guy with a paunch और वो गड़ी के किनारे पे खड़ा हुआ है, a brown woman comes and a white woman comes और वो दोनों को cat calling कर रहा है. कह रहे वो जो white woman को cat calling करेगा ना, उसमें बोलेगा मैडम. Even there is respect. A layer of privilege is there because he's doing the same thing, but just the language is a bit different. You know, he's still calling her madam. There's a layer of privilege still acting on it. So what I'm trying to say is like it's so layered. ठीक है? ऐसा है. There are so many categories. हमें बाइनरीज में फंसा के रखा हुआ है. ऐसा है. ठीक है, there's just so many categories कि आप एक कैटेगरी में घुसेंगे ना और आप उसको बाहर आने का रास्ता नहीं मिलेगा. लिटरली यू गो ऑन वन कैटेगरी टू अनदर कैटेगरी, आपको सडनली लगेगा आई एम लॉस्ट. सडनली आपको लगेगा कि आप लूप में फंस गए, यू आर लॉस्ट. एंड उसके अंदर जो है वो हम बाइनरीज के पीछे पड़े हुए हैं कि एक्सट्रीम्स के पीछे पड़े हुए हैं, येसेस एंड नोस के पीछे पड़े हैं. लाइक वी हैड दिस लाइक हमारी डिस्कशन हुई है काफी लंबी इसमें. ठीक है, प्रिविलेज को लेके and we talked about privileged people. अब अभी तुम बात कर रही हो privileged लोगों से, अभी हम लोग बेसिकली privileged लोगों से ही बात कर रहे हैं ना. हम लोग मैसेज से तो बात नहीं कर रहे, हम लोग privileged लोगों से ही बात कर रहे हैं. क्योंकि मुझे याद है तुमसे पूछा था मैंने एक क्वेश्चन, जाने privileged लोगों से कौन बात करेगा, उनको कौन समझाएगा. That's what you know. I have been wondering about as well. जब मैं अब ग्रे पॉडकास्ट की जब टारगेट ऑडियंस के बारे में सोच रही थी, and I've been very worried about it. You know, there's almost this performance that people expect from you. Okay, oh, because now you're on social media and now you are you know developing this education platform. So आप तो अब यही होगा ना, आपकी टारगेट ऑडियंस तो यही होगी. मासेस को एजुकेट करेंगे ना, अब हम जो पढ़े लिखे नहीं हैं उनको हम एजुकेट करेंगे. व्हेन इट कम्स टू पेट्रियार्की, व्हेन इट कम्स टू मिसोजिनी, माय टारगेट ऑडियंस इज एक्चुअली द मोस्ट एजुकेटेड क्लास ऑफ दिस कंट्री, द मोस्ट एजुकेटेड, यू नो, द लीडरशिप. बिकॉज हमारा जो वर्क प्लेस कल्चर है, हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में जितनी मिसोजिनी इनग्रेन्ड है हर जगह, फैमिली सिस्टम्स के अंदर, इवन इन द मोस्ट एलीट एजुकेटेड प्रिविलेज्ड क्लास, यू वुड सी यू नो द मोस्ट हीनस थिंग्स बीइंग सेड एंड डन टू वुमेन. एंड मुझे ये होता है कि आई थिंक कि सब एजुकेट मासेस को करने के पीछे लग गए और एक दूसरे को कॉल आउट करना बंद कर दिया कि भाई साहब किधर, यू नो. प्रिविलेज क्लास के अंदर वही सब कुछ, कंज्यूमरिज्म नहीं, कॉल आउट ही नहीं हो रहा जी. आपको वो नजर आ रहा है कि वो सारे के वीलॉग्स देखते हैं मिलियन लोग. अच्छा, जो वो कंज्यूमरिज्म नहीं नजर आ रहा आपको, मिलियंस जो है वो किस तरह की फजूल चीज़ों पे उड़ाते हैं. कंज्यूमरिज्म के बारे में नहीं आप बात करते. आई व्हेनेवर यू नो पीपल ब्रिंग अप कि किस तरह से जो है वो वीलॉग्स देखते हैं और क्रिंज कंटेंट देखते हैं सारे और ये सारा कुछ, आई ऑलवेज यू नो लाइक काउंटर दैट विद कंज्यूमरिज्म. कि जाओ अमीरों के ऊपर बात करो जो वो मिलियंस लगाते हैं ना. ठीक है, अगर आपने बात ही करनी है तो जरा आप ठीक है वो देख रहे हैं नहीं देख रहे हैं, सेपरेट डिबेट. आपको बहुत फिक्र है ना माशरे की, बहुत फिक्र है, करो एलीट से बात करो. कंज्यूमरिज्म पे क्यों नहीं बात करते यार? इंडस्ट्रियलिस्ट से बात करो ना, क्यों नहीं करते? हम सबको पता है ना क्यों नहीं करते. इट इज वेरी इजी टू यू नो फाइंड समबडी बिलो यू जिनसे आपको फील हो कि यू नो लाइक मैं तो थोड़ी सी पावरफुल डायनामिक पावर में हूं ना, मैं तो इस डायनामिक के अंदर. तो आई जी मैं आपको बताता हूँ, आपको ना ये व्लॉग्स नहीं देखने चाहिए. Okay, as we are nearing the end of our discussion,
आई फील के मतलब हमने प्रिविलेज लोगों की यानी कि हमारी अपनी इट इज़ ईजियर टू टॉक अबाउट प्रिविलेज यू नो अगेन वही वाली बात है आप प्रिविलेज लोगों के बारे में बात करें आप खुद भी प्रिविलेज से आ रहे हैं सो इट मेक्स यू मोर ग्राउंडेड राइट बट हमने काफ़ी बात की इस बारे में कि हाउ यू नो हाउ बैडली वी आर यूजिंग आवर प्रिविलेज बेसिकली और वी आर नॉट पुटिंग आवर मनी वेयर द माउथ शुड बी वेयर द माउथ इज तो मैं तुमसे ये पूछना चाह रहा था कि कहीं हम प्रिविलेज शेमिंग तो नहीं कर रहे Hmm. कि Yeah. बिकॉज मुझे देवर टाइम्स व्हेन शेम इज कमिंग अप फॉर मी कि ओके आई शुड नॉट हैव बोर्न इन प्रिविलेज यू नो यार मतलब गलत कर रहा हूँ मैं गलती हो गई बच्चे की चाल हो गई क्या बस कर I know. हाँ Hmm. So you remember जब हम प्री-पॉड कर रहे थे and this also came up और जब मैंने ये कहा था कि मेरी कॉन्शियसनेस आ रही है प्रिविलेज शेमिंग को लेके um and there was just silence जगह थोड़ा सा साइलेंस में चले गए थे हम लोग while we were discussing it ठीक है and you can watch that episode as well I don't know the timeline शायद इसके बाद होगी या हो सकता है अपलोडेड हो इस पॉडकास्ट की हमने प्री-पॉड की थी what came up for me because I was thinking about it जब हम एंड में हमने कर दी थी सारा कुछ तो I was thinking I think what was happening for me more than privilege shaming was frustration मुझे ये प्रॉब्लम हो रहा था कि आई एम टॉकिंग टू प्रिविलेज क्लास सही प्रिविलेज क्लास मैंने बोला है कि अच्छे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट से के ग्रेजुएट्स क्रिटिकल थिंकर्स प्रॉबेबली इंटेलेक्चुअल्स एंड यू नो लाइक द प्रिविलेज्ड एजुकेटेड क्लास आई हैव टू एक्सप्लेन माई सेल्फ अब मुझे ये बात उनको समझानी पड़ेगी कि यू नो दिस वाज द कॉन्टेक्स्ट प्लीज बुरा नहीं मानिएगा आई एम नॉट शेमिंग यू दिस इज यू नो लाइक माई लॉन्ग स्टैंडिंग फ्रस्ट्रेशन इन लाइफ कि यू नो लाइक मुझे ये लगा हमेशा कि पीपल हु आर अराउंड मी इन माई सोशल सर्कल विद एजुकेशन यू नो विद दैट ट्रैवल द वर्ल्ड और घूमते फिरते हैं अमीर हैं सब हैं और मुझे सर पीटने पड़ गए अपने लाइक बेसिक बातें नहीं समझ में आती लोगों को यार तो मेरी ना वो फ्रस्ट्रेशन निकल के आना शुरू हो गई कि मतलब so now I have to explain myself कि, oh I was not shaming you for your privilege I have also been shamed for my privilege I understand what privilege shaming is but the point that I have to explain myself and clarify कि, oh I was not shaming you for your privilege it makes me frustrated so I feel frustrated कि आप तो critical thinker नहीं है weren't you supposed to you know have that eye to build the argument rather than pulling it down कि अच्छा जी आपने तो हमें shame हमारा क्या वो you know so मुझे जब मैं ये सोच रही थी ना कि यार ये privilege है this is where I was going कि मतलब then who do I talk to why is it up for a debate like I shared what I shared and who is going to add to it who is going to say कि you know what I think I understand disagreeing with some things but I really think going forward you know this is what we can do plus you know have another deep discussion about how privilege does falana you know where is that like मैं ये क्यों नहीं expect कर रही हूँ कि the privileged class would actually add to the conversation in a productive way rather than taking it personally हमें shame कर दिया so मेरे लिए it's like that frustration is coming up you know what I'm not coddling us anymore there is enough privilege कि आप थोड़ा सा मर्सिडीज में बैठ के थोड़ा सा अपने आप को वो कर दें दिलासा दे दें and then you know get over the conversation you know मतलब मैं क्या बोलूँ take a flight to Paris जाएं आप creme brulee खा के आ जाएं you'll feel better after the podcast I don't know like you know like this is what's coming up for me कि मतलब like आप मतलब आप कोई बात नहीं आप कर सक रहे हैं just because now I have to explain myself so no I think the topic was very specific the topic you know I talked about privilege and the confusion with enlightenment in a very strict context and I expect my target audience just conversation की है for them to get what I'm saying and disagree with it but no it was not privilege shaming
However, if you are privileged, you will feel some shame, Yeah. or shame is not necessarily a bad thing. Yeah. Well, shame is not necessarily a bad thing. It's something whenever shame comes up for you, because this is very therapy language, and I have picked this up from her because she often asks me, "What's coming up for you?" She often says this, "What's coming up for you?" If shame is coming up for you, like it has been coming up from me throughout this podcast, do check in with that. Where is it coming from? क्योंकि जैनब अक्सर कहती है कि जो इमोशंस आप फील करते हैं ना, every emotion that you feel gives you some information. I think she has said this in this podcast as well. Every information, every emotion you feel have some information. You just need to have that eye, separate the blind spots, have that eye, and listen to your privilege. What is it trying to say to you, and what is it doing to you? और लाइक करें, सब्सक्राइब करें क्रे पॉडकास्ट को। शैतान आपको शेयर करने से रोकेगा, लेकिन आप बिल्कुल नहीं सुनिएगा उसकी बात। प्रिविलेज शायद आपको शेयर करने से रोकेगी, लेकिन आप बिल्कुल उसकी बात नहीं सुनिएगा। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर। थैंक यू सो मच।